With us, we have very prominent speakers from Nagpur. For company law and banking prospects, we have our own OS Bagadia sir. He is past chairman of Institute of Chartered Accountants of India. He is also guiding force for Institute of Company Secretaries, past vice president of VI, and many more forums he is there. I request our president Vishal sir to welcome our own Bagadia sir with a floral bouquet. Second in line, we have CA Mahendra Jain sir. He is past president of Celsex Bar, now known as GST Bar Association of Nagpur. I request President V. S. Shethal sir to welcome Mahendra Bhaiya. He is authority in taxation, who GST law, who can explain English in very simple words. जितना जीएसटी पढ़ने में कॉम्प्लिकेशन लगता है, समझने में कॉम्प्लिकेशन लगता है, महेंद्र भैया सामने रहने के बाद उतना इजी लगता है वो. Thank you, Mahendra Bhaiya, for accepting our invitation. And for income tax, we have ever smiling, ever smart, the most charming personality of income tax in Nagpur. There are two stalwarts with us, Naresh Bhaiya, who is our own VI project director, and Kapil Irani. Kapil Irani is the speaker for today's program. I request Vishal sir to please welcome Kapil with a floral bouquet. Continuing with the program, I request President VI Naresh Vishal sir to please have a welcome address. गुड इवनिंग एवरीवन. देखिए, ये सारे सीए लोग के पास अगर अपन फीस देके अगर इनके पास जाएंगे तो काफी महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी फ्री में मिलने के बाद भी काफी कम एंटरप्रेन्योर्स मुझे दिख रहे हैं. मोस्टली प्रोफेशनल ज्यादा है. पर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं कि साल में 2-3 इवेंट जो मैं VIA के कभी मिस नहीं किया हूँ लास्ट 10-15 साल से. उसमें से ये एक इवेंट है मेकिंग मार्च मीनिंगफुल, और एक छोटी छोटी बातें जो इनका रहती है. ये दो इवेंट ऐसे हैं टैक्सेशन के कि ये 1.5 घंटे में, जैसे बोला कि 1.5 घंटे में हमको पूरा रैपिड फायर के साथ सारे पॉइंट्स समझने के लिए मिलते हैं. तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस मौके का फायदा लें. धन्यवाद. Thank you, sir. And not taking any of your time, क्योंकि IPL में फास्ट खेलना है. So I request Bagadia sir to please elaborate the audience on company law and banking matters. Good evening, friends. I am also at the outset, I am thankful to Jay for giving me this opportunity to share my views on banking and company law matters. First, I will take regarding the banking perspective. Banking perspective में होता है क्या है कि सबसे important रहता है कि stock statement और receivable which show in our balance sheet as on 31st March, and that information given to the bank and on that particular March is normally we seen it is not telling. अब जमाना गया कि अपन ने बैंक की लिमिट 1 करोड़ की, इसको कितने का स्टॉक चाहिए 1.5 करोड़ लेके दे देते थे. अब वैसा नहीं किया चलता है, क्योंकि आजकल डिपार्टमेंट भी बैंक को क्या स्टेटमेंट दिया, बैंक को क्या स्टेटमेंट दिया, वो चेक करने लगे हैं. कंपनीज एक्ट में तो एक प्रोविजन आ गया है कि जहाँ 5 करोड़ के ऊपर की लिमिट है, वहाँ चार्टर अकाउंटेंट का ऑडिटर को सर्टिफाई करना है कि बैंक को जो स्टॉक स्टेटमेंट या डिटेल्स लेवल दिया हुआ है इट इज मैचिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट. अब ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वेरीफाई करना है, और ये क्वार्टरली बेसिस पे वेरिफिकेशन करना है. इसलिए इंडस्ट्री वाले से रिक्वेस्ट है कि whenever they give any stock statement and receive statement to the bank, please ensure that it should tally with their books of account. Minor product one can understand, but if there is a major changes, perhaps it may create a problem to you also. आज के तारीख में क्या हो गया, पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना रिटर्न फाइल किया हो गया. आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट खुद कुछ भी वेरीफाई नहीं करता. सब चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलता हमको ये वेरीफाई करके, तो ये इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आजकल प्रोफेशनल से मांगने लगे हैं कि ऑन द फेस ऑफ द रिपोर्ट दे के वेरीफाई की क्या नॉन कंप्लायंसेस कौन से, कंप्लायंसेस कौन से. पहले तो वो मांगता था, अपन देते थे.
अब वैसा जमाना नहीं रहा, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में बोलो या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में सब इंफॉर्मेशन उसके अवेलेबल है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फिक्स में रहता है कि क्लाइंट को सपोर्ट करे कि डिपार्टमेंट की तरफ देखें। तो बेटर है कि अपन को चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करने की कोशिश तो करता है, तो उसकी कोशिश इतनी आप मत कर दो कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। तो ये स्टॉक स्टेटमेंट रिसीव ऐसा है जहाँ नॉर्मली वेरिएशन देखा जाता है, तो कोशिश करें कि इस टाइप का वेरिएशन बहुत माइनर रहे, और देते भी हैं तो क्वांटिटी के साथ में यदि इंफॉर्मेशन दिया है तो समटाइम वी कैन वे की सब क्वांटिटी इज टेलिंग और वैल्यूएशन फर्क है, वो अपन समझा सकते हैं कि हमने हायर वैल्यूएशन में बैंक को दिया है, पर क्वांटिटी यदि टैली होती है तो परहैप्स वी मे बी लिटिल मोर सेफ। और बैंकिंग परसेंट भी क्या होता है कि व्हेनेवर वी टेक एनी लिमिट या विलिंग लिमिट, हम एक सीएमए करके बैंक को स्टेट में देते हैं। वो सीएमए इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हेन वी गो फॉर रिन्यूअल, क्योंकि जब रिन्यूअल के अपन जाते हैं तो बैंक वेरीफाई करता है कि सीएमए में आपने जो सेल्स प्रॉपर्टी नेट स्टेटमेंट दिया है वही स्टेटमेंट आपके बुक्स में आना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सेल्स प्रोजेक्शन मान लो 10 करोड़ का सीएमए दिया है और एक्चुअल में बुक्स में 10 करोड़ दिख रहा है, परंतु जब वो अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखता है तो वहाँ क्रेडिट समेशन कभी 8 करोड़ आते हैं, कभी 7 करोड़ आते हैं, जो 3 करोड़ का जो गैप रहता है तो बैंक के अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, but he may ask information why credit submission in my account is 7 crore and you are showing sales of 10 crore। तो ये डाउट क्लियर हो सकता है कि आपने कहीं और बैंक अकाउंट तो नहीं खोला है where you are deposited 3 crore turnover, वो पूछ सकता है। वैसे ही कई बार क्या होता है ज्यादा रहा तो भी he may ask the information why the credit submission is higher than the sales which are shown in the accounts। तो नॉर्मली ये वेरीफाई करने की जितने भी ट्रांजेक्शन है वो एक बैंक के अकाउंट से रूट है, माइनर डिफरेंस आ सकता है, कई बार सेल किया है और क्रेडिट में तो उसका समेशन तो उसका अकाउंट में आएगा नहीं। तो इतना ध्यान रखें कि आप जो सेल देखते हो और बैंक को जो सीएमए में दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर मैं तो 10 करोड़ दिया था 10 करोड़ टैली है, वो ऐसा नहीं मानेगा, वो देखेगा कि 10 करोड़ का टर्न मेरे अकाउंट में क्रेडिट आया कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हर बैंक वेरीफाई करती है और बहुत माइनर डिफरेंस रहा तो दे इग्नोर इट, बट मेजर रहा तो दे आस्क द इंफॉर्मेशन व्हाई क्रेडिट समेशन इज नॉट मैचिंग विद द सेल्स वी आर शोइंग इन द बैलेंस शीट। उसके अलावा बैलेंस शीट में भी सीएमए में नॉर्मली क्या है, सोइंग अंडरटेकिंग मेरी कैपिटल इतनी रहेगी, मेरा रिजर्व इतना रहेगा। और मार्च में कई बार तो होता है कि स्पेशली पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जितनी कैपिटल अपन सीएमए में या बैंक को क्वेश्चन दिखाते हैं वो कैपिटल पार्टनरशिप फर्म केसेस मैंने मार्क किया कि वो मैच नहीं होती। तो पार्टनरशिप फर्म में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनी में तो क्या होता है कि यू कैन नॉट विड्रॉ द कैपिटल, यू कैन नॉट विड्रॉ द रिजर्व अनलेस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। और पार्टनरशिप में तो क्या जो प्रॉफिट कमाया पार्टनर्स को चले जाता है, पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं। तो आप ये वेरीफाई कर लीजिए कि जितना अपन ने पार्टनर्स कैपिटल या नेटवर्क दिखाया है उससे कम नहीं होना चाहिए। बढ़ती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम होती है तो परत बैंक में आके योर विड्रॉ दी मनी फ्रॉम दी बिजनेस, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। तो कोशिश होनी चाहिए कि अपना जो नेटवर्क है whatever we have projected to this bank it should maintain। सिमिलरली ड्राइंग पावर अपना जैसे लिमिट मान लो 5 करोड़ की है तो बैंक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है कि स्टॉक पे 25% मार्जिन रहेगा, बुक रेट में समटाइम 25-30% मार्जिन रखते हैं। तो और उसमें से जो भी ड्राइंग पावर अपना रहता है वो नॉर्मली करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जैसे डेटर्स है स्टॉक है माइनस क्रेडिटर्स करने के बाद ड्राइंग पावर निकलता है नॉर्मली। तो अपने को ये देखना है कि अपना ड्राइंग पावर इज मैचिंग विद योर स्टॉक स्टेटमेंट एंड डेटर्स लेवल माइनस क्रेडिटर्स की वैल्यू। कहीं ज्यादा नहीं आता है ड्राइंग पावर तो इट मींस यू आर ओवरड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आपका ड्राइंग पावर रहता है। कई बार क्या होता है कि कुछ बैंक ऐसी है कि दे गिव द कंबाइंड लिमिट, स्टॉक एंड बुक डेट्स कंबाइंड लिमिट देते हैं, कुछ लोग स्टॉक के अलग लिमिट देते हैं और बुक डेट की अलग देते हैं। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि बोथ द केसेस अवर ड्राइंग पावर इज मैचिंग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हम लोगों को ये एडवाइस रहती है कि व्हेनेवर वी गेट अ सैंक्शन लेटर फ्रॉम द बैंक उसको ये बोले कि हमको दोनों मिला के एक लिमिट दे, स्टॉक की और बुक डेट की अलग अलग नहीं, अदरवाइज इट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि जब स्टॉक का देखते हैं तो स्टॉक में से क्रेडिटर्स माइनस कर देते हैं, यदि स्टॉक 1 करोड़ का है क्रेडिटर्स 1 करोड़ तो देयर इज नो लिमिट अवेलेबल अगेंस्ट स्टॉक। क्रेडिटर्स ज्यादा है तो उसकी भी सब लिमिट है, उसके ऊपर देगा नहीं। यदि कंबाइंड लिमिट रहेगी तो वो रिवील करके डेटर्स स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स वो लिमिट बढ़ जाती है। तो इंडिविजुअल लिमिट रही तो कई बार ये बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो व्हेनेवर वी गेट अ सैंक्शन फ्रॉम द बैंक अब उसको कंबाइंड लिमिट के सैंक्शन के लिए अलग से स्टॉक का अलग का मत करिए। आजकल मोरल बैंक सब कंबाइंड लिमिट देने लगे हैं, पहले थोड़ा बहुत चलता था, कई बैंक कभी भी स्टॉक के अगेंस्ट की लिमिट बुक के ऐसा देते हैं। तो कोशिश करना है उस टाइप की लिमिट अपन जब आती है तब मना करते हैं कि हम आपको कंबाइंड लिमिट दीजिए।
जैसे कैपिटल का बोला है कि कैपिटल ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर से कैपिटल कम नहीं हुए, तो वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। और दूसरा ग्रुप, कई बार क्या अपने जो ग्रुप फंड्स है उसमें अपने काफी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो साल के आखिरी में थोड़ा सा ये इंश्योर करिए कि जो ग्रुप कंपनी से अपने कुछ लेना हो तो वो पूरा का पूरा मार्च के पहले अपना पैसा वापस आ जाए। ऑन दी फेस ऑफ द बैलेंस शीट वो ग्रुप से आउटस्टैंडिंग नहीं दिखे। यदि ग्रुप से आउटस्टैंडिंग दिखते हैं तो नॉर्मली बैंक वाले अपने नेटवर्थ से कम कर देते हैं। यदि नेटवर्थ आपकी 5 करोड़ है और आपने रिलेटेड पार्टी फर्म को एडवांस दिया 2 करोड़ रुपए, तो वो आपका नेटवर्थ से 2 करोड़ कम कर देगा। इट मीन्स दैट मनी इज नॉट इन योर सिस्टम, नॉट ऑफ द सिस्टम, तो नेटवर्थ से वो रिड्यूस कर देते हैं अकॉर्डिंगली। समटाइम जब ऐसा होता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि यूर शिफ्ट द मनी, यू आर डाइवर्टेड द मनी फ्रॉम दिस कंपनी फॉर योर पर्सनल पर्पस। तो डाइवर्शन अवॉइड हो सके तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरा समटाइम में देखा जाता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपन करते हैं, कुछ लोगों के पास पैसा पड़ा रहता है तो अपने पास से कुछ असेट्स परचेस कर लेते हैं या कुछ कैपिटल करते हैं। मेरी एडवाइस है कि whenever you go for any major capital expenditure, take a term loan from the bank so that आपका डाइवर्शन ऑफ फंड फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म नहीं दिखे। नहीं तो डाइवर्शन दिखता है तो क्या है कि आपका फाइबर करंट रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। करंट रेशियो नॉर्मली बैंक का डिजायर रहता है कि 1.2 तो मिनिमम चाहिए और 1.3 इज आइडल, बट 1.2 इज ओके इफ योर करंट रेशियो इज 1.2। तो डाइवर्शन होने के बाद कई बार क्या होता है कि ये करंट रेशियो यदि किसी का एकदम मार्जिन रहा ना तो ड्रास्टिकली वो रिड्यूस करता है। किसी का 1.78 है, फिर डाइवर्शन किया तो 1.3 मेंटेन हो जाता है। बट यदि किसी का एकदम मार्जिनली है तो इंश्योर करना कि उतना करंट रेशियो 1.2 से बिलो नहीं जाए। और स्पेशली फॉर स्मॉल इंडस्ट्री, फॉर बिग इंडस्ट्री परहैप्स दे मे इंसिस्ट फॉर 1.33। और स्पेशली ड्यूज जो है वो नॉर्मली आपने बिल्कुल टाइमली पेमेंट करना चाहिए, बिकॉज यदि स्पेशली ड्यूज का पेमेंट नहीं रहा तो देयर इज फियर कि आपका अकाउंट गवर्नमेंट ऑथोरिटी फ्रीज कर दे। तो वो बैंक को बहुत फियर रहता है कि आपका स्ट्रक्चरल लायबिलिटी आपकी एकदम टाइमली होना चाहिए, क्योंकि नहीं रहा तो डिपार्टमेंट कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। वो फियर बैंक को रहता है, इसलिए वो रखना चाहते हैं कि आपके स्ट्रक्चरल लायबिलिटी जीरो रहे, टाइमली पेमेंट है वो इंश्योर करना चाहते हैं। कई केसेस में स्पेशली जब मल्टीपल बैंकिंग बनती रहती है या लिमिट लार्ज रहती है तो ड्यू डिलिजेंस भी कई बार बैंक कराती है। तो ड्यू डिलिजेंस थोड़ी सी एक रिगरस प्रोसेस है। वो आई डोंट नो कि इसमें से आप लोगों को कितने को काम पड़ा है। उस प्रोसेस में बहुत सी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और कभी ऐसा आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी इज कमिंग अंडर ड्यू डिलिजेंस, तो उसके जो रिक्वायरमेंट है 20, 25, 30 क्लॉज है जहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, वो प्रोफेशनल रिपोर्ट करनी पड़ती है कि अप्लाई किया कि नहीं। यदि कोई ड्यू डिलिजेंस में आता होगा तो आप देखिए कि वो सब कंप्लाई अपन बुक्स में कर रहे हैं कि नहीं। जब बैंक से अपन किसी प्रकार का टर्म लोन लेते हैं तो वो भी इंश्योर करते हैं कि आपने टर्म लोन जिस पर्पस के लिए लिया है उस पर्पस की मशीनरी या इक्विपमेंट आपने लिया है कि नहीं, वो नॉर्मली वो वेरीफाई करते हैं। लिमिट मंथ एंड की जो लिमिट रहती है, नॉर्मली क्या होता है कि बैंक का आजकल जो इंटरेस्ट लिमिट है वो मंथली हो गया, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि मंथ एंड में आपकी लिमिट इतनी खाली रहे कि जो इंटरेस्ट वो लोग बैंक वाले चार्ज कर रहे हैं वो विद इन द लिमिट में रहे। नॉर्मली होता है कि लिमिट फुल रहती है, जब वो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है तो लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वो जब क्रॉस होती है तो वी टेक इट एज ओवरड्राफ्ट। तो इट इज डिजायरेबल कि व्हेनेवर मंथ एंड आता है तो इंश्योर करें कि इंटरेस्ट का जितना पेमेंट है उससे की लिमिट अपनी खाली रहता है। अदरवाइज नहीं तो ओवररन करते हैं और नेगेटिव आता है। तो वो रेटिंग होती है ना कंपनी की, तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन नेगेटिव आते हैं। और रेटिंग के बारे में इंपॉर्टेंट है कि मोरलेस आजकल हर बैंक इंटरनल क्रेडिट रेटिंग करती है, अकॉर्डिंगली वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो अपना काम है कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट यदि ज्यादा है तो वो अपन क्रेडिट रेटिंग का जो उनका चार्ट रहता है वो दिखाते नहीं है, पर ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव बैंक और बैंक दे भी देती है। तो कौन से पैरामीटर में आपने को कम मार्किंग हो रही है वो अपन ने समझना चाहिए, और उन पैरामीटर्स में जो भी वीकनेस है यदि अपन सॉल्व कर सकते हैं तो उस पॉइंट को हम इम्प्रूव करके बैंक से बात कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम मेरे पास 20 मेरी रेटिंग डाउन हुई थी, इस बार मेरा करेक्शन हो गया है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरी रेटिंग इम्प्रूव की जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिड्यूस किया जाए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो नॉर्मली बैंक से लिया था आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉर्मली देखा है कि जो लोग लिमिट में ऑपरेट करते हैं ना तो वो बैंक के पास जाते चाहिए, बोले मेरे को बैंक के पास जाने की क्या जरूरत है, मतलब लिमिट में ऑपरेट करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बैंक के पास रेगुलरली विजिट होना चाहिए। बैंक वालों को बोलो कि मेरे फैक्ट्री में साल में एक बार बुलाना चाहिए, और उसको ताकि उसमें भाई क्या बना क्या रहे, नहीं तो बैंक वालों को यही मानो कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, आपकी लिमिट जो भी है विद इन लिमिट आप कर रहे हैं, एवरीथिंग ओके, यू आर मेकिंग, हम देख तो वो आपको जानता ही नहीं। तो जाने का सबसे पहले तरीका होता है कि आप उसको साल में 1 या 2 बार बुलाइए अपने फैक्ट्री में, उसको दिखाइए। कई बार अकाउंट ऑफिसर लोग बैंक से मिलते, ओनर नहीं मिलता, तो उसको ये मतलब कि ओनर कौन है कंपनी का, तो आप उसको फैक्ट्री लाइए, ओनर से मुलाकात कराइए। तो क्या होता है कि फिर एक पर्सन इंटरेक्शन कॉन्फिडेंस लेवल उसको बढ़ जाता है, यार इस तरह से फैक्ट्री देख के आया है। जब वो रिन्यू करता है या लिमिट बढ़ाता है, तो वो बिल्कुल बिंदास होकर बढ़ाता है कि उसका मैंने फैक्ट्री देखा है, वो 3 दिन हो गए। तो कोशिश करिए कि बैंक वाला साल में एक बार तो कम से कम रहे, या अपन उसके पास चले गए। इंटरनेशनल विद दी बैंक होना चाहिए, तो इंडिया में जितना स्ट्रांग रहेगा उतना बैंक का भी कंफर्ट बढ़ता है। तो और उसके अलावा क्या होता है कि कई बार अपने कुछ अचीवमेंट अपन करते हैं, तो अचीवमेंट अपने तक ही रह जाते हैं। तो बैंक को भी इन्फॉर्म करो कि साहब मेरे को ये रिकॉग्निशन मिला है, ये मेरे को सर्टिफिकेशन मिला है, ये मेरे को स्पेशल ऑर्डर मिला है। नॉर्मल कोर्स से मिला होगा, बैंक का लेटर लिख के उसको इन्फॉर्म करना है, दिस इज द माय इशू अचीवमेंट, मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला है, मेरे को ये अवार्ड मिला है। राइटिंग में जाना चाहिए, उनके रिकॉर्ड करना चाहिए। तो क्या होता है कि उसको समझ में आता है कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है, ऑफिशियली भेजना चाहिए कि मेरे को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन। तो क्या होता है, वो जब जाता है तो पढ़ता है, फाइल में भी लग जाए। फाइल में भी लगता है। तो अब बिल्कुल करना चाहिए। मेरे जितने भी क्लाइंट है, घर को बोलता हूँ ऐसा रहा तो सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म कर कि मेरे को ये अवार्ड मिला है या मेरे को ये एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, ताकि वो मिला है ऑर्डर ठीक है, और राइटिंग में जाएगा तो फाइल में लग जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक के लियाजन जितना अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए लिमिट बढ़ाने में, एडिशनल लोन देने में, रिन्यूअल में आपको इजी जाएगा। ये एक शॉर्ट में मैंने बताया जो बैंक के पर्सपेक्टिव में आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और सेकंड मैटर है कंपनी लॉ मैटर। इसमें से आपके कितने लोग हैं जो प्राइवेट लिमिटेड स्टेटस में काम करते हैं, सो दैट आई शुड नो कि व्हाट एक्शन आई शुड टॉक ऑल दिस थिंग्स। काफी क्योंकि ये लिमिटेड कंपनी में कॉन्सेप्ट आजकल इतने ज्यादा कंप्लायंस से बढ़ा दिया गया है, और पेनल्टी इतनी ज्यादा इम्पोज कर रही है, तो नॉन कंप्लायंस इज वेरी कॉस्टली। तो कोशिश करना कि नॉन कंप्लायंस जीरो है, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट जब जाती है उसमें एफरेंटली ऐसा कुछ दिखे नहीं कि कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया, क्योंकि बिकॉज ऑडिटर्स को आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है कि ये कंप्लायंस किया है कि नहीं। तो ऑडिटर तो कोशिश करता है कि ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन में तो ठीक कर ले, तो देखिए ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट दिखता है तो उसके भी हाथ बन जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें अपने को देखनी रहती है कंपनी लॉ में, एक तो मार्केट, जो कंपनी को यदि जो बोरिंग करनी है तो कंपनी की बोरिंग मार्केट के पैसे से नहीं की जा सकती। कंपनी कैन बोरो, कंपनी कैन बोरो फ्रॉम डायरेक्टर्स, देयर रिलेटिव और फ्रॉम शेयर होल्डर। मार्केट से कंपनी बोरो नहीं कर सकती है। तो ध्यान रहे कि 31 मार्च में ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं रहे जो मार्केट की बोरिंग हो, वो पैसा डायरेक्टर्स या उसके रिलेटिव और शेयर होल्डर से आना चाहिए। डायरेक्टर पे भी पैसा आता है तो उसकी कंडीशन है कि डायरेक्टर ने मार्केट से बोरो करके देना नहीं चाहिए डेफिनेटली। वो देते हैं ओनली, पैसा भी मैंने दिखता नहीं है तो वो कंडीशन है कि डायरेक्टर ने रेट में पैसा दिया है, मार्केट से बोरो करके कंपनी ने नहीं दिया, ऐसा एक लॉ है। और तुमको देखता कोई नहीं, बट कोशिश करो कि मार्केट से बोरिंग करके नहीं देना है। तो कई बार ये रोड के थ्रू लोग पैसा मार्केट बोरिंग कंपनी में डालते हैं। आजकल एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट 2 या 3 साल से आगे है, कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बाय 30 जून, जिसमें इसको ये देखना है कि क्या क्या आपके डिपॉजिट बोलने में डिपॉजिट है, वॉट एवर आउटस्टैंडिंग इज देयर, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है बैंक बोरिंग कितनी है, डायरेक्टर से एग्जेम्प्टेड बोरिंग कितनी है, नॉन एग्जेम्प्टेड बोरिंग कितनी है। वो रिटर्न जाता है, वो कितना देखते हैं मुझे मालूम नहीं, और दैट रिटर्न इज कंपलसरी। इवन नील डिपॉजिट को तो रिटर्न कंपलसरी है। तो 30 जून इज द लास्ट डेट। नॉर्मली क्या होता है कि लोग अनऑडिटेड फिगर डालने में इंटरेस्ट लगता है तो लेट फाइलिंग करते हैं, तो उसमें भी लेट फाइलिंग लगती है नो पॉइंट, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बहुत बेसिक है, वो आपने कोई भी आगे बढ़ सकता है, उसके लिए ऑडिटर अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। और 30 जून के पहले रिटर्न फाइल करना पड़ता है। नीले तो भी करना है सर ना। हाँ, रिटर्न डिपॉजिट में ये नॉर्मली होता नहीं, कहीं ना कहीं बैंक बोरिंग या थोड़ा बहुत तो कुछ ऐसा रहता है, किसी की असल की शेयर कैपिटल और कोई लाइबिलिटी ऐसा होता नहीं है, कोई इसमें डायरेक्टर बोरिंग। गवर्नमेंट कंपनीज हैं उसको भी करना चाहिए सर, जैसे मान लो गवर्नमेंट कंपनी का एग्जांपल है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, नहीं गवर्नमेंट कंपनी यदि वो ऑपरेटिव है, गवर्नमेंट कंपनी करके रजिस्टर करा लिया तब तो जरूरत नहीं है, बट अगर ऑपरेटिव है तो ऑपरेटिव है तो करा। प्राइवेट लिमिटेड को भी हाँ सबको ये तो सबके लिए कंपलसरी कर दिया है स्पेशली।
एक एमएससीबी का ड्यूज का भी रहता है, अभी तो काफी स्ट्रॉन्ग होकर के आपने इसमें 45 पेमेंट नहीं किया तो इनकम टैक्स में डिसऑर्डर जाता है। और ये रिटर्न आपको हाफ ईयरली कंपनी को फाइल करना पड़ता है विद द आरओसी। दीज आर द ड्यूज दे आर आउटस्टैंडिंग मोर देन 45 डेज। उसमें इंटरेस्ट भी कंपलसरी है। हाँ कंपलसरी है, चार्ज करने के बाद वो आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा जब आउटस्टैंडिंग मोर देन 45 डेज है। तो ये तो कई बार लोगों को नोटिस आता है भाई, आता है कई नोटिस कि आपका इतना आउटस्टैंडिंग है तो वो देखा जाए मैंने पेमेंट कर दी। तो गवर्नमेंट लिबरल है बट वी हैव टू इंटीमेट टू द आरओसी 45 डेज के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग है उसका हाफ ईयरली रिटर्न, हाफ ईयरली रिटर्न एक तो सितंबर का जाएगा, एक मार्च का आएगा। तो सर अब ये वाली इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती ये है इनकम टैक्स से भी? इंफॉर्मेशन अब वो हो सकती है ना, आपके गवर्नमेंट से तो क्या इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो शेयर हो सकता है। इधर आप बोलोगे नहीं है और इधर रिटर्न जा रहा है, कई बार क्या है आपने रिटर्न में डाल दिया कि मेरी ऐसे में आउटस्टैंडिंग है और बैलेंस शीट में आया ही नहीं या बैलेंस शीट फिगर से मैच नहीं हुआ, तो देख सकता है कि बैलेंस शीट में साहब आउटस्टैंडिंग टू एमएससीबी 1 करोड़ दिखा रहे हैं और रिटर्न में आपने जो भरा इसको 75 लाख दिखा है, तो 25 का गैप है। तो आजकल वो सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। ऐसा नहीं कि हम कुछ फिगर डाल दिया हो गया, वो सब डिफिकल्ट। टेनिस में रिटर्न साल में 2 बार है, सितंबर एंड मार्च। वो एसमी का फॉर्म है, वो मुझे फॉर्म नंबर याद नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आजकल रिपोर्टिंग है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, आप ध्यान रखो कि आपकी बैलेंस शीट में स्पेशल प्राइवेट लिमिटेड में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करते हैं, चाहे कोई सैलरी हो या कोई परचेज सेल परचेस हो गए, तो ये सब ट्रांजेक्शन एट आर्म्स लेवल रखना चाहिए, मार्केट रेट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि यदि नहीं रहा तो परस कुछ पूछ सकते हैं व्हाई यू आर सेलिंग अप टू एसोसिएट एट ए लोअर रेट, तो वो अवॉइड करने के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज होते हैं वो अपन ने कोशिश करना है कि मार्केट रेट से हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि यदि मार्केट रेट पर नहीं है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो या कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन यदि एक्सीडिंग लिमिट है तो शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ती है। तो प्राइवेट लिमिटेड वाले कभी इस टाइप में कभी वो ध्यान देते नहीं, इवन चार्ट अकाउंटेंट को या कंपनी ये भी नहीं मानो कि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की है। जब ऑडिट होते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये इतने ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी है उसमें से लिखते हैं, तो हम लोग नॉर्मली सबको ही बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ किया करो, और ताकि वो जो सेक्शन है जहाँ की रिपोर्टिंग है वो एप्लीकेबल नहीं रहे। केवाईसी अभी डायरेक्टर एवरी ईयर अपने को केवाईसी डायरेक्टर ही करानी पड़ती है, गवर्नमेंट को बोला गया सब लोग 3 साल में एक बार करो, हर साल केवाईसी करानी पड़ती है। और केवाईसी कराने की फीस नहीं है, मतलब कि सितंबर तक होना चाहिए, नहीं हुआ तो 5 फीस लगती है, और जी मोमेंट लेट होगा तो आपका डायरेक्टली इनएक्टिव हो जाता है और उसी का कट ऑटोमेटिक, फिर आप पेमेंट करोगे करोगे तब वो आपकी डायरेक्टली एक्टिव हो। तो डिस्क्वालिफिकेशन भरने के केवाईसी सितंबर तक टाइम रहता है, कोशिश कर लो कि वो जैसे ही मार्च एंड होता है अपन उसको तुरंत इमीडिएटली करवा दें। तो इसमें तो करना पड़ेगा कि आपको पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड देना पड़ता है, थोड़ी टीडियस प्रोसेस है, कई बार ओनर गुस्सा भी जाता है या कितनी बार फोन करेगा कि तेरे को कराना तो ठीक है मेरा काम नहीं है, अब जब मेरे को करना है तो मेरे को तेरा वहाँ को एसएमएस आएगा उसका मेरे को देना पड़ेगा डिटेल, तब कोई जाके केवाईसी अपडेट होती है। तो कई बार बड़ा दिक्कत जाती है, स्पेशली जो बड़े इंडस्ट्री वाले के हो गया मेरे को फोन कर रहा है, तो ये पैसे मैसेज तो आपको ही आएगा मेरे को नहीं आएगा। तो केवाईसी 30 सितंबर से पहले कर लेना चाहिए। एक फर्क इम्पोर्टेंट है कि एडवांस टू डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटेड पार्टीज, ये totally prohibited है। You cannot give any loans to director, their relative, totally prohibited, because लोन की रिपोर्टिंग ऑडिटर को करनी पड़ती है कि ये सेक्शन 185 में आता है कि कंपनी ने ऑडिट में कंप्लायंसेस किया है कि नहीं। तो कोशिश करना कि डायरेक्टर रिलेटिव को अपन एक पैसा अकाउंट में यदि दिया तो मार्च में अपियर नहीं हो। इसके अलावा कंपनी टू कंपनी अलाउड है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे सकती है रिलेटेड कंपनी नहीं तो भी, बट उसके लिए अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने को बोलते हैं, जो नॉर्मली मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम मिस होता है। अब मिस हो गया तो अब ऑडिटर को बोलना है कि 185 कंप्लाई किया, चलो क्या बोलेगा, तो उसके सामने धर्म संकट है कि वो बोले कि 185 एप्लीकेबल नहीं है, कि आपने शेयर होल्डर रेजोल्यूशन दिया है कि नहीं, तो वो दिक्कत आती है। तो और ये ऐसा नहीं कि आपने एक जनरल रेजोल्यूशन किया आई कैन टू रिलेटेड पार्टी अप टू 5 करोड़, वैसा नहीं, वो केस टू केस बेसिस पे वो
बनी रहता है। तो 185 एक बड़ी मतलब पैनल प्रोसेस की पेनल्टी काफी हैवी है। कोशिश करो कि आपस में अपन लोन नहीं दे कंपनी को, कोशिश करें देना है तो इंटर कॉर्पोरेट रहा तो अपना रेजोल्यूशन जो रिक्वायर्ड हो पास करें। वैसे ही नॉन रिलेटेड पार्टी को भी लोन्स देते हैं तो भी उसमें एक सीलिंग है कि आपकी सीलिंग से ऊपर यदि रहता है तो आपने रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। और किसी थर्ड पार्टी को भी लोन देते हैं वो इंटरेस्ट फ्री नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है आप आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं और इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो आजकल दैट इज नॉट अलाउड। तो आपने इंटरेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट किया सेक्यूरिटी डिपॉजिट किया तो इट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, इट इज नॉट लोन। बिजनेस एंड सेक्यूरिटी डिपॉजिट में कोई इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिपॉजिट की तो इंटरेस्ट बेरिंग रहेगा कि इंटरेस्ट नहीं रहेगा, दैट इज ओके। अदरवाइज यदि अपन ने रियल में लोन दिया है किसी कंपनी को तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। हाँ, एज बैंक रेट जो भी आता है उसमें करना। और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो नॉर्मली लोगों से छूट जाता है कि अपन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में बड़ा देखते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर, परंतु उस सब जगह मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर का टेन्योर 5 साल था। पहले ऐसा प्राइवेट में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब उसने बताया कि इसका टेन्योर 5 साल है तो 5 साल के बाद आपको उसको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा और ये नॉर्मली देखा छूट जाता है। अब वो छूट जाता है तो आपने 5 साल तो हो गया ओके, उसके बाद आपने ऐसे एमडी अपन तो जितने भी आपने ऐसे एमडी की वो गलत हो गई। तो अब सवाल ये था कि हाउ टू रिमेम्बर कि अपने 5 साल कंप्लीट हो गए। लिस्टेड कंपनी में तो कभी सेकंड ऐसे ध्यान रखते हैं। प्राइवेट लिमिटेड हाउ टू रिमेम्बर कि अपने शेयर में 5 साल हो गए। तो हम लोगों ने अभी ऐसा डिवाइस किया कि हमने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डालना शुरू कर दिया जो इज नॉट मैंडेटरी कि सो इज होल्डिंग दी पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर उस टेनर ऑफ दिस आल्सो। तो जब भी वो डायरेक्टर से बुलाते हैं तो पीरियड सामने आता है कि इसका ये ड्यू है, तो अकॉर्डिंगली वी टेक ए अप्रोप्रिएट एक्शन। पहले ऐसा नहीं था, पहले अपॉइंट कर दिया खत्म हो गया। आज का 5 साल के ऊपर वो टेनर नहीं रहता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि एमडी अपॉइंट होता है मान पड़ा कि टेनर अपन एक्सटेंड नहीं किया। कई केस में ऐसा हो चुका था कि इसमें एमडी करके निकालना था, मतलब मेरी पर्सनल केस है। बोले इसको एमडी करके निकालना कैसे निकालना, जब सामने मैंने ऐसे 5 साल 2 साल पहले हो गए निकाल देते उसको, निकाल दिया और वो बाद में कभी ना बोर्ड में गया बोले तो आपका टेबल खत्म हो गया हो गया कि कैसे एमडी तो जीत गया कि तो ऐसा मतलब ऐसा हो गया कि अब उसका रिन्यूअल नहीं हुआ तो फॉर्चुनेट दूसरी पार्टी जीत गई जिसको उसको हटाना। फर्दर इशू ऑफ कैपिटल नॉर्मली ऐसा है, अपन कई बार देखते हैं कि अपना होने की जरूरत पड़ती है, अपन बुलाते हैं चार्टर अकाउंटेंट को दिया ये शेयर अलर्ट कर रहे हैं, शेयर अलर्ट हो जाते हैं। पर नॉर्मली क्या होता है कि शेयर जब अलॉट करते हैं तो उसके पहले वैल्यूएशन करना पड़ता है। वैल्यूएशन भी रजिस्टर वैल्यूएट से कि मेरा शेयर बुक वैल्यू जो भी आगे उसको इशू करना पड़ता है उसके। और तो वो जब भी अलॉट करते हैं पड़ता है, यदि राइट इशू नहीं है तो आपको शेयर का वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। राइट इशू में जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नॉर्मली मैक्सिमम टाइम तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फर्दर इशू करना है तो राइट इशू के थ्रू उसको कर दे। पर कई बार क्या होता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है जिसको आपको शेयर देना है तो राइट इशू में थोड़ा सा दिक्कत जाती है कि वो शेयर होल्डर नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसको पहले कोई शेयर ट्रांसफर करते हैं, यदि थर्ड पार्टी को देना है पहले इसको मेंबर बनाते हैं, फिर राइट इशू करते हैं। उसको शेयर ज्यादा देना है तो वो ज्यादा अप्लाई करता है और बाकी जिनको नहीं देना वो कम अप्लाई करता है। ऐसा करके वो राइट इशू बढ़ा के अपन ये वैल्यूएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि इनकम टैक्स वाला अपना एक डिफरेंट व्यू ले सकता है कि यार ये सब आप किसी को शेयर देने के लिए अपने प्रोसेस किया। तो कोशिश करना कि राइट इशू है जिनाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु कि थर्ड पार्टी को शेयर अलॉट करना तो बेटर है कि अपने वैल्यूएशन कराना, वैल्यूएशन के बेसिस पर उसको शेयर अलॉट करना चाहिए। ऑडिटर का आजकल अपॉइंटमेंट 5 साल की रहता है और ध्यान रखिए कि वो एवरी 5 इयर्स अपन उसको रिन्यू करें। प्रॉपर्टी कंसर्न रहा तो फिर वो 5 साल के बाद दोबारा लेने लगता है। वो पार्टनरशिप है तो 2 टर्म उसको एज ए ऑडिटर अलाउ करते हैं। स्मॉल कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अपॉइंट ऑडिटर सेम ऑडिटर फॉर एनी नंबर ऑफ डेट बट एट ईच टाइम प्लीज टेन्योर विल बी 5 इयर्स। अदरवाइज नहीं तो फिर वो 5 साल या 10 साल के बाद आपको रिटायर करके किसी नए को अपॉइंट करना पड़ेगा। और कंपनी को एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं एजीएम से
60 डेज के अंदर, और वैसे अकाउंट्स भी फाइल करना है से विदिन 30 डेज। कोशिश करो कि ये टाइमली फाइल हो जाए, क्योंकि पहले तो ऐसा होता कि यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो नॉर्मल फीस का 2 टाइम्स 3 टाइम्स लगता था, पर ये फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, इसमें वो क्लॉज हट गया है। अब 100 रुपये पर डे पेनल्टी इस पे आपने टाइमली फाइल करके ठीक है, नहीं तो 100 रुपये पर डे की पेनल्टी जब तक आप फाइल नहीं करते आते तो बहुत महंगा पड़ता है। कहीं पर 2-2 महीने निकल गए तो 6-6 हजार रुपए की वो सर ये क्वालिटी में घट गया, लेट फी हो गया। हाँ, वो ना जो भी हो लेट फी, तो वो 100 रुपीज पर डे पेनल्टी अच्छा, आजकल पेनल्टी कहीं नहीं लगा, सब लेट फीस है। पेनल्टी का एक क्या है कि तो कोर्ट में पेनल्टी चैलेंज को कर खर्चे सकते में नहीं डाल सकते। नहीं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते पेनल्टी ना तो या फिर पर फीस रहा तो फीस कोर्ट में चैलेंज होगा, इसलिए आजकल कई लोग वो फीस वर्ड यूज करते हैं। सभी जगह फीस ही है, हाँ, सब पेनल्टी बहुत कम वो पेनल्टी का तो लेकिन कोर्ट में थोड़ा सा पेनल्टी लगना नहीं चाहिए, गलत है। पर एक फाइनल में फीस को खर्चे में डाल सकते हाँ, ये बात तो सही है। सब इनकम टैक्स वाले बताएंगे। तो इसलिए जो प्राइवेट में कंपनी ने आपकी बैलेंस शीट रिटर्न टाइमली फाइल करना चाहिए, अदरवाइज 100 रुपये पर डे इज वेरी हाई एडिशनल फीस। एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी अमेंडमेंट आया है कि प्राइवेट कंपनी को भी शेयर डीमेट में कंपलसरी कर दिया है। पहले फिजिकल फॉर्म में आप रख सकते थे, अभी रिसेंटली ये अमेंडमेंट आया है और 30 सितंबर तक आपको आपके शेयर डीमेट में कंपलसरी कर दिया है। बट एक्सेप्ट है कि स्मॉल कंपनी में एग्जाम्पशन दिया है। स्मॉल कंपनी में जिसकी पेटेंट कैपिटल 4 करोड़ है या इसका टर्नओवर 40 करोड़, दोनों में मीट आउट होना चाहिए, तो उसको डीमेट कराने की जरूरत नहीं। अदरवाइज बाकी कंपनी जिसका पेटेंट कैपिटल 4 करोड़ के ऊपर या टर्नओवर 36 करोड़ के ऊपर है, तो उसको अपने शेयर डीमेट में कंपलसरी कन्वर्ट कराना पड़ेगा। वो इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी जब डीमेट की बात आती है तो शेयर सर्टिफिकेट ढूंढो, तो बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास है ही नहीं, कहाँ है, तो वहीं से स्टार्ट होगी प्रोसेस की सर्टिफिकेट ढूंढो सा है ही नहीं, बोलते सर्टिफिकेट मतलब ऐसे बोलने से नहीं चलेगा कि डीमेट कंपलसरी है। लेकिन 30 सितंबर बाद डीमेट आप नहीं करते हैं तो यू कैन नॉट ट्रांसफर शेयर, यू कैन नॉट मेक एनी पेमेंट। जिसे शेयर्स नहीं मिले तो क्या नहीं गए तो डुप्लीकेट करना पड़ेगा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। दोबारा हाँ, और क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आप शेयर सर्टिफिकेट अपने आप ही रखने का भी इम्पोर्टेंट बढ़ते जा रहा है। और वैसे तो मैं तो एडवाइस रहता है कि यदि सब कुछ ठीक है तो आप डीमेट में शेयर रखिए, ना आपको Yes. संभालने की जरूरत ना कुछ करने की। This is what I just wanted to share with you. तो डीमेट का आप ध्यान रखिए कि सितंबर के पहले जो कंपनी में आ रही है वो अपना कर लें। थैंक्स फॉर पेशेंस शेयरिंग। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे भी सामने आए थे कि व्हाट इफ अगर 6 मंथ्स में रिटर्न फाइल नहीं किया तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आपसे पूछूंगा किसी एमएसएमई वाले 6 मंथ्स में रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा। एंड सेकंड लोग फाइल भी नहीं कर रहे ना, मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, ऐसा बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस तो हर एक जगह है जो फीस के नाम से भी कवर हो चुकी है। हम तो सभी प्रोफेशनल्स में एक ही चीज बोलते हैं, इफ यू वांट टू ट्राई नॉन कंप्लायंस डू ट्राई, आपको पता चल जाएगा कितना कॉस्टली है। So now it's time to listen to Mahendra Bhaiya. Mahendra Jain sir on indirect taxes, especially GST and professional tax. धन्यवाद सचिन, वेदर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एवर स्माइलिंग अध्यक्ष विशाल भैया, मेरे साथी स्पीकर बगड़िया जी, कपिल हिरानी, मेरे मित्र और इस प्रोग्राम के रचयिता नरेश जकोटिया और आज के प्रोग्राम के कन्वीनर सचिन जजोदिया एंड आप सभी को सादर नमस्कार। इस प्रोग्राम को 15 वर्ष हो गए और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं 13वीं बार एंटर कर तो हम फॉर्चुनेट है कि आप हमारे साथ हैं कल से। ठीक है, प्रोग्राम को मेकिंग मार्च मीनिंगफुल बनाया था कि मैं मार्च महीने में प्रिकॉशंस ले कि साल भर के सारी चीजें दुरुस्त हो जाए। लेकिन वैट रेजिम भी जब था, अब जीएसटी रेजिम भी है। आजकल मार्च नहीं, एवरीडे इंपॉर्टेंट है ट्रांजेक्शन की, कि आपको ट्रांजेक्शन के पहले, ट्रांजेक्शन एंटर करने के पहले ये पता होना कि इसके कॉज और कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो है मार्च में हमको ध्यान देनी चाहिए, वो मैं पहले ले लेता हूँ। और जीएसटी के अंदर में सबसे अहम विषय जो है
कि आपको आपका लेजिटमेट इनपुट सीमलेसली मिल जाना चाहिए। जो जीएसटी की अवधारणा थी कि भी सीमलेस क्रेडिट ट्रैवल करेगा, अब वो आप अपने दिल पे हाथ रख के बता सकते हैं कि कितना सीमलेस आप लोग ले पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। कुछ पॉइंट जो है मार्च में हमने ध्यान रख लेना चाहिए कि भाई मार्च खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल से हमको बिल की नई सीरीज चालू करनी चाहिए। 1 अप्रैल से बिल की नई सीरीज चालू करनी। बिल की सीरीज आप कितनी भी कर सकते हैं, हर डीलर के नाम से एक बिल की सीरीज बना सकते हैं। आपको कैसे मेंटेन करना है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि 1 से ही चालू करेंगे, आप उसके पीछे वो लगा के कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल से आपको नई सीरीज चालू करनी है, आपके मार्च तक की सीरीज को एंड करना है, उसी को कंटिन्यू नहीं करना। तो इससे फायदा तो ये भी है कि भी मुझे पहले कुछ बिल छोड़ने पड़ते थे 2-5 दिन के एडजस्टमेंट के लिए, तो वो सब समय गया। दूसरा, ई इनवाइसिंग की भी 1 अप्रैल से ई इनवाइसिंग किसको लागू हो रही है? ई इनवाइसिंग 500 करोड़ से चालू हुई थी और 1 अक्टूबर लास्ट ईयर से 5 करोड़ पे आ गई। कि भी आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, किस साल का? 17-18 से 23-24 तक। तो 22-23 तक का आपका 5 करोड़ था, तो आप 1 अक्टूबर से इनवाइसिंग में आ चुके। लेकिन अभी 23-24 में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गया है, तो आप 1 अप्रैल से ई इनवाइसिंग पे आ गए। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिकॉशन लेके तैयारी कर लेनी चाहिए। 5 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं सर, ये क्वेश्चन तो आप मेरे से बोल ही नहीं सकते, आप ही बता सकते हैं। आपने पूछा क्योंकि ये ठीक है, वो तो टर्नओवर जो है उसमें टैक्सेस और सेस दोनों इंक्लूड नहीं है। अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सेस इंक्लूड है क्या, टैक्स नहीं है तो, राइट। तीसरा कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एलयूटी, ये ऐसी शेयर वगैरह की जो ट्रांसफर कर हम बेच रहे माल और विदाउट टैक्स पेमेंट करना है, तो एलयूटी एवरी ईयर रिन्यू करनी पड़ती है, तो वो कर लीजिए। उसके लिए 31 मार्च को लास्ट डेट नहीं है, आप ट्रांजैक्शन के पहले भी एलयूटी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ईयरली बेसिस पे आप कर लिए तो ज्यादा बेहतर होता है। फिर यहाँ सब इंडस्ट्रीज के लोग ज्यादा बैठे हो सकता है ट्रेड के भी हो, कि भाई जो लोग कंपोजिशन स्कीम में हैं, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, अब सपोज उनका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टर्नओवर 1.5 करोड़ को पार कर गया, तो उसी मोमेंट पे उनको नॉर्मल टैक्सेशन में चेंज होना पड़ता है। या आप नॉर्मल में हैं और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आपको लगता है कि नॉर्मल की कंप्लायंस नहीं करने, मुझे कंपोजिशन में जाना है, तो आप कंपोजिशन ऑफ भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, एक इनको है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनको ये सुविधा है कि आप क्वार्टरली पेमेंट मंथली पेमेंट कर दीजिए टैक्स का, और रिटर्न जो है आपका जीएसटी अपने रिटर्न क्वार्टरली फाइल करिए। लेकिन 2021 से जब से ये जीएसटी 2B का कंसेप्ट आया, या कि भी आप इसमें बहुत कम लोग ही बचे कि मैं आपको डीलर बोलता है कि मैं आप मंथली ही रिटर्न फाइल करें, लेकिन जो भी अगर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में है, तो नेक्स्ट ईयर पे ऑप्ट करना है तो 30 अप्रैल तक उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इशू है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन को अपन थोड़ा सा रुक कर लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ उसी में है। मैंने अर्लियर भी बोला है कि वह इंडस्ट्री में रिकंसिलिएशन मैनेजर की आवश्यकता है, अलर्ट मैनेजर की आवश्यकता है। एक आदमी तो ये ऐसा होना कि हर चीज को रिकंसाइल करते रहे। अभी सर ने बोला कि सीएसआर एक्टिविटीज इंडस्ट्री बहुत कर रही है, तो एक नया रिस्ट्रिक्शन आ गया सेक्शन 75 में कि भी आपने सीएसआर एक्टिविटीज पे जो खर्चा किया है, उस पे जो जीएसटी लग के आया है, वो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो आपका इनएलिजिबल है।
तो अगर आपने नॉर्मल कोर्स में क्या होता है अकाउंटिंग करते करते कि भाई ये बिल आया इसका जीएसटी ले लिया, अभी तक अलाउड था क्या? हाँ लेते थे लेकिन स्पेसिफिक आ गया, पिछले साल के बजट में आ गया ये, उसके पहले लिखा नहीं था, तो जो नहीं लिखा वो कहाँ बांचा? हम लिखा ही बांचते नहीं, तो जो नहीं लिखा वो कहाँ से बांचेंगे? तो सीएसआर एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे जो भी हुए हैं, और अगर हमने उसका इनपुट ले लिया है तो मार्च के पहले उसको रिवर्स कर लीजिए, तो उसकी लेगेसी आगे दी जाएगी, बैड लेगेसी या गुड लेगेसी जो भी बोले, वो 75 में अब अलाउबल नहीं है। अगला जो है कि भी जैसे एमएसएमई का प्रोग्राम जो अभी हुआ था कि एमएसएमई को आपने पेमेंट नहीं किया तो इनकम टैक्स में डिसअलाउंस हो जाएगा। जीएसटी एक्ट ने डे 1 में बोल दिया कि भी आपने इस इनवॉइस का इनपुट लिया, अगर उसका पेमेंट 180 डेज में नहीं किया, इनवॉइस अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स, तो आपको 180 दिन के बाद उस इनवॉइस में जो क्रेडिट लिया उसको आपको रिवर्स करना है और विद इंटरेस्ट उसको पे करना है। एज एंड व्हेन आप पे करेंगे आपको फिर से वो इनपुट एलिजिबल हो जाएगा। यस सर अगर डेबिट नोट इशू कर दिया हो तो फिर क्या करेंगे? हाँ, अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू हो गए हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू हो गया है तो आपका जो नेट फिगर है, क्योंकि डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी आपके रिफ्लेक्ट हो गए। अब आपकी सिचुएशन आप बताइए कि आप बायर हैं सेलर, आप बायर हैं, 180 डेज में आपको पेमेंट करना था, आपने डेबिट नोट किस चीज का इशू किया? बैक क्वांटिटी यानी गलत क्वांटिटी आ गई या मटेरियल बराबर नहीं आया, रेट का डिफरेंस है। इनवॉइस जो इशू किया आपने डेबिट नोट इशू किया, लेकिन उसको क्रेडिट नोट इशू करके उससे जीएसटीआर 1 पे देना पड़ेगा, तो जब तक जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाएगा तब तक आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट? तो आपका जो नेट अमाउंट है भी आपने डेबिट नोट दे दिया, उतना अमाउंट तो उससे रिड्यूस हो गया। डेबिट नेट इज अमाउंट टू पेमेंट, क्योंकि आप उतना पेमेंट एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे जो भी आउटस्टैंडिंग है उस इनवॉइस के अगेंस्ट। सपोज आपका 1 लाख का इनवॉइस है और उसमें 10,000 का डिस्प्यूट है और ये 90,000 आपका 180 दिन में नहीं पे हुआ, तो ये 10,000 का जब आप डेबिट नोट दे रहे हैं सामने वाले को, और सामने वाला सेलर क्रेडिट नोट जब तक इशू नहीं करेगा उसका टैक्स इंपैक्ट आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते, राइट? तो आपका टैक्स इंपैक्ट रिवर्स हो गया, यानी आपका ट्रांजेक्शन हो गया 90,000 का, तो आपको 90,000 का कंप्लाई करना, ओके? ठीक है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ये हो गया। फिर टाइमली आईटीसी क्लेम करना। अभी सबसे बड़ा पेंडिंग इशू जीएसटी का अगर है तो सेक्शन 64 का है कि भाई आपने जीएसटी टाइमली क्लेम नहीं किया, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है, पहले था कि 20 अक्टूबर तक, अभी 30 नवंबर तक ईयर एंड से, तो आपको नहीं ही मिलेगा। तो आपका ऐसा कोई इनवॉइस छूट रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको आपने चेक कर लेना चाहिए। उसी तरह आरसीएम पेमेंट्स, आरसीएम पेमेंट में कई बार क्या होता है कि भाई मोस्टली आरसीएम रहता है मेरा जीटीए का, ट्रांसपोर्ट का, कभी कोई बिल्टी लगी नहीं लगी तो उसमें टीमिंग लीडिंग हो जाती है, टाइम आगे पीछे हो जाता है, हर मंथ में एग्जैक्टली अमाउंट नहीं होता। तो अगर जो छूट गया है तो पीछे से उसको रिकंसाइल करते हुए आप उसको मार्च में भर दीजिए। फिर एक छोटी सी बात है कि जो जीटीए रजिस्टर्ड हैं और फॉरवर्ड चार्ज में रहना चाहते हैं तो उनको जो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्ट करने का है उनको एक एनेक्सर फाइल करना होता है, तो वो उसकी फाइल करने की लास्ट डेट है 18th ऑफ दिस मंथ मार्च। तो 18 मार्च तक आप फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट कर लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ईयर बिगनिंग के बाद आपको उसका चांस नहीं है। लास्ट ईयर कुछ लोगों ने शुरू किया था तो एक एक्सटेंशन आया था उसमें, लेकिन उसको टाइमली कर लिए तो ज्यादा बेहतर है। एक इशू मेरे को सचिन ने आते ही फॉरवर्ड किया था कि भाई टीडीएस, जीएसटी में टीडीएस का क्रेडिट, तो जीएसटी का आपका टीडीएस का क्रेडिट दिखता है, आपको टीडीएस का एक रिटर्न डालना पड़ता है कि भाई अवेलमेंट का, तब आपका वो पैसा आपके कैश लेजर में ट्रांसफर होता है।
तो वो कैश लेजर में ट्रांसफर करने के पहले ये देख लीजिए कि वो आपका जो टीडीएस है वो आपके ही बिल पे का है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं है। फिर सचिन ने बोला कि कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि भाई अपने एम्प्लॉय ने पूछा कि सर ये इसमें टीडीएस दिख रहा है, इसको ले लूं क्या? ले ले। और लेने के बाद फिर दुखी होने से पहले अच्छा है कि भाई आप उसको देख ले, या ऐसा कुछ लेने के बाद भी तकलीफ में है। अभी एक और दिक्कत आई इन सालों में कि हम गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, हमने बिल दे दिया मार्च में या फरवरी में, जब भी दिया हमारी तो सेल हमने बुक कर दी, जीएसटीआर 1 में दिखा भी दिया। अब उसका पेमेंट आता है मई और जून में, और गवर्नमेंट एजेंसी टीडीएस काटती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फिर अचानक गवर्नमेंट को इंटरनल डिपार्टमेंट में इंटरनल सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन ऐसे आ जाते हैं कि टीडीएस से आपका टर्नओवर टैली करिए, वो मैच नहीं हो रहा, फिर एक रिकंसिलिएशन बना के दीजिए। तो आप पहले से उसको प्रिपेयर करते रहे, क्योंकि ये दिक्कत आई है। अभी एक लेटेस्ट दिक्कत जो आई है, कुछ लोगों को नोटिस आए होंगे कि आईजीएसटी का इनपुट आपने नहीं दिया है, आपका एक्सेस क्रेडिट दिख रहा है आईजीएसटी में, उसको आप रिकंसाइल करके दीजिए, ऐसे नोटिस आए हैं। और फिर अगर ऑफिसर के पास आप जाके मिलते तो बोलता है कि करंट मंथ के उसमें आप उसको अवेल कर लीजिए और रिड्यूस कर लीजिए। लेकिन वो मेरे राय में अभी राइट नहीं है, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे थे अभी तक मोस्टली वो रॉन्ग मेथड ही फॉलो कर रहे थे कि ऑल आईटीसी जो 3B में हम भरते हैं उसमें हम पूरा नहीं भरते कि जो 2A और 2B में आ रहा। सपोज जो मेरे 75 में अलाउबल नहीं है मोस्टली पैसेंजर व्हीकल्स का, कार खरीदी, कार का डीलर ने तो जीएसटी 1 डाल दिया, आपके 2A 2B में दिख रहा है, लेकिन आपको एलिजिबल नहीं है तो आप क्लेम नहीं करते, लेकिन उसको ऑल आईटीसी में दिखा के नीचे रिड्यूस करिए। ये सीख हमने अभी जीएसटी को 6 साल 8 महीने 8 दिन और 18 घंटे हो गए तब सीखी है। इसके रिलेटेड आजकल स्टेट डिपार्टमेंट नोटिस भी दे रहे हैं ना कि आपने आईटीसी रिवर्सल दिखाया नहीं। हाँ। तो अभी हमको ये मेथड चेंज करनी पड़ेगी कि हमारा जो जितनी भी परचेजेस है, जब हम परचेजेस बुक कर रहे हैं तो हम जो जीएसटी के टैक्स के यानी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो सेल्स जिसकी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो जितने इनवॉइस आ रहे हैं उसको हमारे इनपुट लेजर में डेबिट करें, और जो इनएलिजिबल है उसको फिर जर्नल एंट्री से वापस ले जाए, और रिटर्न में भी उसका रिफ्लेक्शन उसी तरह दिखाए। तो सब्सिक्वेंट पीरियड में ये गलतियां बच जाएगी। अभी तो इग्नोरेंस में भी गलती है, हमने भी 100 में 99 रिटर्न में इसी तरह लिया है कि भाई नेट जितना एलिजिबल है उतना आईटीसी के कॉलम में दिखाया, जितना भरना भर दिया। तो ये ऑनवर्ड्स ये है कि भाई आपका रिकंसिलिएशन आपकी बुक से ही रिफ्लेक्ट हो कि आपने आईटीसी इतना आया आपके पास, उसमें से इन एलिजिबल आपने आईटीसी अकाउंट को क्रेडिट करके रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस और असेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। और जीएसटीआर 3B में भी ऑल आईटीसी में पूरा फिगर है जो उससे मैच आ जाएगा हमारे 2A 2B से, और एलिजिबली हम नेट लेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट की जो तैयारी दिख रही है और जिस तरह से हर चीज लॉक हो रही 2B आने के बाद से, कि भाई आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी तो आपने खुद डिक्लेयर करनी है, जीएसटीआर 1 में आपने कर दिया, उसके लिए तो आप श्योर है, कहीं बाहर से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। अब इनपुट का ही दिक्कत है, अब इनपुट जो है एलिजिबल का आपका प्रॉपर आ गया आपने और आपके 2B में आ गया, तो उसके बाद तो बैंक से इंस्ट्रक्शन ही लेगी गवर्नमेंट कि भाई ये आपकी कैलकुलेशन है, इसको ओके बताइए, क्योंकि आजकल प्री फील्ड आ जा रहा है, आईटीसी भी आ जा रहा है, जीटीए के फिगर रिवर्स चार्ज के भी आ जा रहे हैं, आउटवर्ड का हम 1 डालते तो 3B में निफ्टी का आ जा रहा है। तो वो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई अब हमको ये बता दीजिए कि भाई आप ये सब इंफॉर्मेशन ओके है, तो एक बैंक से उतना पैसा ट्रांसफर करने के इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। ये भी समय आ सकता है।
अब छोटी सी एक और चीज है कि HSN कोड इनवाइस में कितने डिजिट के होना, ये पुराना ही है कि 5 करोड़ से ऊपर टर्न हो रहा है तो 6 डिजिट मैंडेटरी। अब जो मार्च में आप एक्सटेंसिवली थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस देके जो चीज सुधार सकते हैं अपन उस पर आते हैं कि भी आपके आउटवर्ड सप्लाई है जो आपने GSTR 1 में दिखा दिए, नहीं दिखाए हैं तो वो आप दिखा दीजिए। हालांकि हम उसको 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न विच अर्लियर तक दिखा सकते हैं, लेकिन इस साल का ट्रांजेक्शन अगर कुछ छूटा है तो हम इसी साल उसको डिस्क्लोज कर दे तो दोनों साल में रिकंसिडर करने से हम बच सकते हैं। फिर दूसरा एक रिकंसिडरेशन निकाल लीजिए कि भी जो फिगर्स GSTR 1 में गए हैं वही आपके 3B में गए हैं। कई बार क्या होता है कि भी GSTR 1 हमने 11 तारीख तक फाइल कर दिया और बाद में पता चलता है कि कुछ इनवाइसेस छूट गए GSTR 1 में रिपोर्ट होने के, उसको हम रिपोर्ट नेक्स्ट मंथ के पहले तो कर ही नहीं सकते, लेकिन हमको हमारे 3B के पहले वो नोटिस में आ गए तो हम 3B में उसको डिस्क्लोज कर देते हैं कि 3B में राइट उस मंथ की लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दी और अकॉर्डिंगली टैक्स भर देते हैं। तो नेक्स्ट मंथ मैंने GSTR 1 में वापस उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, अगर कर दिया तो 2 महीने का टोटल लगाऊंगा तो मेरा टर्नओवर मैच हो जाएगा। तो उसी तरह मैं पिछले 11 महीने में देख लूं कि ऐसी कुछ मिस्टेक्स हुई है तो मार्च के रिटर्न में मैं उसको कर लूं कि भी मेरा जो 11 अप्रैल को तक मार्च का GSTR 1 जाना है उसमें मेरे पूरे साल के ट्रांजेक्शन आ जाए, मेरी सेल्स और वो इन 12 महीने के GSTR 1 मैच हो जाए, 3B भी उससे मैच हो जाए तो एक आइडियल सिचुएशन बन सकती है। अब कितने लोगों की बन सकती है वो अपने अपने देखने पड़ेंगे लेकिन ये करने से ये हो जाएगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अननेसेसरी नहीं जाएगा। ये तो आपके एंड से आप कर सकते हैं GSTR 1 के, बाकी तो फिर बाद में आपको जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट आएंगे ईयर एंड के बाद उनके इम्पैक्ट रहेंगी, वो आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। कंप्लायंस आप जो बता रहे हो उससे लग रहा है कितनी बड़ी टीम तो ये सब चीज में लगेगी। नहीं तो उसके लिए तो आपको रखना ही है। अभी इसमें मैं एक सिचुएशन और बताता हूँ जो क्या होता है कि भी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री वाले में तो उनके सिस्टम वर्क करते रहते हैं, ये करते रहते हैं। जो मिड साइज वाले लोग हैं उनको कैसा होता है कि भी 14 तारीख को जब 2B आता है और कम है या लाइबिलिटी आती है तो बिल के लिए दौड़ते हैं। जो बिल की दौड़ है वो किस तरह से, और उसको बिल बेचने वाले जो है वो सबसे स्मार्ट पर्सन होते हैं। और अभी तो एक केस ऐसा एनकाउंटर हुआ कि अच्छी बड़ी कंपनी है और हाँ नहीं अभी पे लाइव नहीं है नाम नहीं ले रहा कंपनी का। ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ कि भी एक कंपनी से B को माल गया, A ने बेचना था सिर्फ Q को, उसने पहले माल बेचा B को, B ने बेचा C को, C ने बेचा D को और D से फिर गया Q को। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, सबने GSTR 1 टाइमली डाल दिए, एक को छोड़ के बाकी सबने 3B भी टाइम से डाल। एक को छोड़ के हाँ, जो यहाँ से ओरिजिन हुआ था उसने 3B नहीं डाला। अब प्रोविजन ये आ गया कि ये इनपुट के रूल्स बोलते हैं कि भी आपका इनपुट अगर आपके ओरिजिन से टैक्स नहीं भरा तो आपको नहीं मिलेगा। अब ये पता कब चल रहा कि भी ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, ओपन हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, कि भी A ने 3B नहीं डाला तो जो पहला जिसको सेल हुआ था उसका इनपुट रुक गया। डिसअलाउ हो गया, उसका इनपुट डिसअलाउ हुआ तो सब्सिक्वेंट सब आ गए। मेनवाइल ये हुआ कि भी जिसको पहला बिल गया था वो भी वो कंपनी की वो थी
सिस्टर कंसर्न। 3 नंबर वाली एक जेन्युइन थी, 4 नंबर भी उसकी थी, कंपनी की। पहली वाली के पास डिपार्टमेंट पहुंचा इंक्वायरी करने के लिए, उसने 3B नहीं डाला है, ये आपका इनपुट डिनाई होता है। उसने हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं तो बिल मास्टर हूँ, मेरा सिर्फ 250 करोड़ का टर्नओवर है, मैंने 9B डाला, 9C भी डाला, सब डाला। डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करके उसका नंबर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में विथ इफेक्ट फ्रॉम 2 जुलाई, नॉट 1 जुलाई, 2 जुलाई 2017 से कैंसिल कर दिया। अब इस सिचुएशन में इस चेन के पूरे लोग अजीब, कुछ केस लॉज है, कोर्ट के डिसीजन है कि भाई सबसे पहले तो जिसने डिफॉल्ट किया उससे वसूलो, उसके बाद हमारे पास आओ। लेकिन प्रैक्टिकल में डिपार्टमेंट में ऐसा होता नहीं। डिपार्टमेंट तो फटाफट नोटिस इशू कर रहा है और ऑर्डर पास कर रहा है, आप उसको डिनाई कर रहे हैं कि भाई हम तो बराबर है, ये हमारा बैंक से ट्रांजैक्शन है पूरा, ये ई-वे बिल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट है, आखिरी में जिस कंपनी को माल गया उसका गेट का ठप्पा भी है। लेकिन अननेसेसरी लिटिगेशन क्रिएट हो रहा है। इसके अंदर में ध्यान देने वाली बात है कि हम किससे परचेज कर रहे हैं और उसने कंप्लायंस किया कि नहीं किया। जैसा जीएसटी आया था और जीएसटी रिटर्न के लिए कहा गया था, अपन जोकिंगली बोलते रहते थे कि भाई पड़ोसी का बच्चा भी ये रिटर्न भर सकता है, इतना इजी है कि भाई आउटपुट लायबिलिटी इनपुट बैलेंस टैक्स पेमेंट रिटर्न इज ओके। लेकिन उतना इजी नहीं है, क्योंकि व्यापार जगत के अंदर में सभी तरह के लोग बैठे। अभी लेटेस्ट में तो ये हो गया कि भाई सामने वाला इतना लंबा चल नहीं सकता। पहले क्या होता था अर्लियर ईयर्स में कि भाई आपको जीएसटीआर 1 आप डाल सकते थे, 3B नहीं भी डाले तो, यस 3B नहीं भी डाले तो आप जीएसटीआर 1 डाल सकते थे। अब ऐसा है कि भाई आपका लास्ट 3B नहीं गया तो नेक्स्ट जीएसटीआर 1 आपका होल्ड पे चला जाता। तो कुल मिला के प्रिकॉशन ये है कि भी आपका लेजिटिमेट इनपुट आपको मिले और आप फॉल्स इनपुट लेने की कोशिश ना करें। अगर फॉल्स इनपुट आप लेते हैं तो कब क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई भी चोरी जो है वो एरर फ्री नहीं हो सकती। कोशिश हम रहती है, व्यापार में कभी कैश फ्लो की दिक्कत रहती है, रहती है कि टैक्स नहीं भर सकते, ये नहीं रहते, लोग करते हैं, लेकिन इसको अवॉइड किया ही जाना ज्यादा बेहतर। चलो धन्यवाद सचिन, आज प्रोग्राम टाइम भी चला रहे हैं। थैंक यू महेंद्र भैया। सॉरी कैसा है आईपीएल के रूल से कुछ कितने देर में बैट्समैन आना चाहिए, कितने देर में जाना चाहिए। एंड वी हैव अवर डैशिंग बैट्समैन विद अस, कैप्टन ईरानी। Kapil, please come and deliberate on income tax aspects. Then we will have a question answer session. एक रिक्वेस्ट है कि अगर प्रोग्राम का डेलिब्रेशन बीच में क्वेश्चन करने के लास्ट में पूछेंगे तो टाइमिंग मेंटेन होगा और सबका बेनिफिट होगा। थैंक यू। Honorable President of the VIA, Mr. Vishal Agarwal ji, my respected seniors in the profession, Bavaria sir, Mahindra Jain sir, my dear colleagues in the profession, Naresh and Sachin, dear friends, very good evening. It's lovely to be here. In fact, as Jain sir said that unka 13th year hai, mera 7th hai. I think 2017 was the first year. So I was telling Naresh this year when he called me, देखा यार मेकिंग मार्च मीनिंगफुल की इनकम टैक्स की बहुत चीजें मैं 7 साल से बोलते जा रहा हूँ। आइदर सबने फॉलो कर लिया होगा या किसी ने फॉलो नहीं किया होगा। अंडर एनी केस वापस रिपीट करके कोई मतलब नहीं आएगा वो चीजें मेरे को इस साल में, because we have been repeating the same thing, emphasizing the same thing over and over again over the past 7 years now. So I can just hope that some of the things may have been implemented by all of you. So this time it was a conscious effort to expand and elaborate the things that I normally say with certain other aspects which are slightly more advanced to the talks that we normally had over the past years. So all said and done, I would just brush up with the things that normally I emphasize in, and we can elaborate on the certain aspects which
I haven't elaborated yet over the past years, and we can give some more time to that, keeping in mind the time limit of 7:30. So I'll try to cover as much as possible in this 20 minutes which have been allotted to me, and I'll be more than happy to answer your questions after we are done with this. To start with, I would like to go absolute basic to one thing which I can't stress enough, and which is actually creating a lot of issue, and probably which can be easily solved. That thing is that considering everything has become online now, so far as income tax is concerned, I earnestly request all of you to please log into the sites and update your email ID and mobile numbers on the site. My biggest problem as a tax litigant and as a counsel for the SSCs is कि every time what is happening is कि एक assessment कभी खत्म हो गया है, 6 महीने बाद the SSC is coming to me कि ये order pass हो गया है जिसकी demand आ गई है, and when I go through that order, जितने भी notices issue हुए हैं, एक का भी reply नहीं दिया गया है, and demand confirm हो गई है, इतनी demand हो गई है. Now the SSC comes to me कि अब क्या करना है, and which creates a huge issue for me. Reason being, first and foremost, I have to ask him कि क्यों नहीं दिए reply, and the answer is that I was not aware that such a notices were being issued to me. Why weren't you aware that such notices were being issued to you? One, पुराना email ID था. That email ID belonged to an earlier staff of mine. That staff is no longer working with me. As such, उसके पास गया होगा. That is again an assumption. And secondly, the mobile number which was there was a very, very old mobile number. As such, I did not get even a single email with respect to this. Now, this cannot be a default on the part of the department. This has to be a default on your part. अगर आपका staff छोड़ के गया, it was your duty to update the email ID on the portal, जो आपने नहीं की. उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 नोटिस दिए हैं आपको, 10 नोटिस का एक भी रिप्लाई नहीं गया है. What else do you expect the department to do? Department would make the assessment जो उनको ठीक लगेगा, उठा के टैक्स निकाल के आपको भेज देगा. Now you have come to me, so my immediate question is कि फिर आज कैसे पता चला कि ऐसा ऑर्डर पास हुआ है? Then the question is कि घर पे एक लेटर आया जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिकवरी के लिए या तो बैंक अकाउंट अटैच किया है या ये किया है. At that point of time I came to know कि मेरे पास ऐसी भी कोई डिमांड. Now this creates two problems for me. The first and the major problem is if I go into appeal against whatever demand has been raised, what do I say in appeals? My case becomes very weak. I come across as a non-compliant assessee. And there is a very old saying which says that law helps those who help themselves. Unfortunately, you chose not to help yourself. So it's an uphill battle before the case starts. Secondly, appeal file करने के लिए the time prescribed is 30 days. आप आए 6 महीने के बाद मेरे पास. Now what do I say? कि condonation क्यों होना चाहिए? सबसे पहली बात, ये तो आज हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं जहां पे अनलिमिटेड condonation का एटलीस्ट प्रोविजन है. आज मैं जीएसटी में देखता हूं, सर वुड बी अ बेटर गाइड टू एनलाइटन अस. 3 months plus 1 month condonation का पावर दिया हुआ है. So 4 महीने के ऊपर even GST authorities do not have the power to condone it. Now what do? Now you have to go and prove कि आपको जो ये ऑर्डर मिला सबसे पहली बार कल मिला, 6 महीने पहले नहीं मिला. Now imagine the uphill task that you are facing in getting at least your appeal admitted, forget winning in the future. So without fail, the first thing all of you have to do, please log in onto income tax portals. Please update your email IDs to whatever the email ID of your company is. We professionals would have loved to have our email ID assigned to it, which we used to do in the good old days. But आज की डेट पे one email ID, I believe it can only be taken for 10 assessees. It cannot be assigned to more than that. And trust me, it becomes an impossible task for us to manage the email ID of so many assessees. So it's better that you have a dedicated person जो वो email IDs को properly maintain कर सके,
every notice that you receive, please forward it to your councils for immediate action. That I think has to be one of the most primary aspects that you all have to say at this point of time. 31st March 24 is the date जब बहुत सारी इनकम टैक्स असेसमेंट्स टाइम बार हो रही है, जिसके पहले उनको असेसमेंट कंप्लीट करना ही है. नाउ प्लीज जब आप ये ईमेल आईडी को अपडेट करने जाएंगे, प्लीज टेल सम ऑफ योर स्टाफ टू प्लीज सी कि आपके कोई पेंडिंग नोटिसेस, पेंडिंग असेसमेंट वाली चीजें तो नहीं है, जो फाइनल नोटिस आके पड़ा हुआ है एंड विच यू हैव नॉट येट फॉरवर्डेड टू योर सीए, so that अगर कोई ऐसे पेंडिंग नोटिसेस हैं, प्लीज इमीडिएटली फॉरवर्ड इट टू योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स so that the proper reply can be filed. You all know that we are in the regime of faceless assessment and faceless appeals now. Unfortunately, the personal experience that we are facing, faceless appeal से हमको नोटिस आ रहा है हियरिंग का, हम लोग रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, रिप्लाई फाइल करने के बाद ऑर्डर नहीं आता. It's been years की ऑर्डर पास नहीं. बट हमको हियरिंग का नोटिस आया है, आपने ड्यू डेट पर अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया, नेक्स्ट डे आपको ऑर्डर आ जाएगा, योर अपील इज डिसमिस्ड फॉर नॉन कंप्लायंस. Unfortunately, this is the situation which is happening, which can easily be avoided. And if that has happened with you, you do not have an option but to file an appeal before the tribunal. आप ट्रिब्यूनल जाएंगे, ट्रिब्यूनल वापस से आपको रिमांड बैक करेगा सीआईटी अपील के पास, वापस आपको वही करना पड़ेगा जो आज करना है. So avoid that additional cost and that additional work which is there. One other thing you all have to start evaluating right away is how are you placed with respect to old regime of taxation versus the new regime of taxation. I think this is one thing that exercise needs to be done by everyone. I personally have been a very strong advocate for the old regime. Somehow the new regime has never appealed to me. The reason being, anything which is anti-savings, in my personal view, cannot be a good scheme, considering that we have been a society which has been driven by savings in the past. It is this habit of savings that has insulated us from all the depression phases that have occurred so far as the economy is concerned. So anything which suggests you should not save somehow doesn't appeal to me. I'm old school with respect to that, but having said that, please evaluate as to which regime suits you better. If you are a person driven by savings, I suggest please continue in the old regime. If and only if you are having a business income, then you are supposed to file a specific form with the income tax department saying that I want to opt so far as the new regime is concerned. Once you have opted in the new regime, filing that form, आपको withdraw करने का सिर्फ एक opportunity मिलती है, that you can withdraw in the future. But अगर आपकी business income नहीं है and you are having income from salary, house property, capital gains, other sources, except business, there is no need to file this form. Every year you can decide new versus old. So just evaluate. My personal suggestion is go ahead with your savings like you were going as it is. At the time of filing of the return, choose whether you want to go in for the old regime or new regime, whichever gives you a lesser taxation, please go ahead with that. Invariably, what I have seen is people who have actually invested and taken the whole benefit of the deductions and exemptions invariably will come out better in the old regime. It is only for the absolutely new millennia that the new generation which is there who doesn't believe in savings, that you would somehow feel that yes, the new regime is now beneficial. So I always joke, you know, there was a kid who came to my office. He has recently joined a job, BPO something, getting handsome salary to start with. And he came and met me, and I told him all those things that we regularly tell people, ki yeah, medical bhi kara lo, PPF mein bhi dal do, LIC bhi karwa do, you are young, all these things are going to benefit you, etc., etc. And he came back in March after a year, didn't do a thing.
एक भी चीज उसने नहीं किया. Okay, and very happy spending all the salary that he was earning. So that gave me a reality check कि यार ये savings concept doesn't appeal to them, doesn't appeal to the new generation. So the next time the other person came in, I told him, मैंने कहा यार, if you can invest, I know it's a waste, but if you can invest 1,50,000 rupees, 50,000 tax बच जाएगा. He invested it the next day. You know, so it is just how we think about it. But in the long run, whatever little I can tell you from my experiences, savings have never hurt any one of us. And considering the tax saving investments that we have, vis-a-vis the other options of investment, those are by far more safe and sound. So that is one thing that is to each his own. If you can evaluate that, that would be of great help to you. With respect to the other thing that I want to tell you is, once you're asking your team member to go and log into the site, please check what is the status of your returns which you have filed for the immediate preceding year, for two reasons. One, has it been processed? Effective तो नहीं हो गया return. Secondly, processed होने के बाद जितना आपका refund या demand था, उसी पर प्रोसेस हुआ है, या अनाप शनाप की कोई डिमांड ऐड होकर आ गई है आपको. If that is the case, please communicate it with your chartered accountant or advocate. Thirdly, whatever refund was due, has it been granted? Because we are facing many times that that has been some change so far as your bank is concerned. बैंक की कोई regulations change हो गए हैं, उनका IFSC code change हो गया है, because of which the bank accounts as uploaded on the income tax side are not getting validated. So if that is the case, it is a very simple process. Get your account validated, make a refund reissue request, get it rectified as early as possible. Recently, as it was briefly mentioned, with respect to the disallowance and the need for making payments with respect to transactions with MSME. That is somehow a very burning topic now that needs to be addressed. So this being the first year of the applicability, I thought I'll share some time to it. It is the rule now, as you are aware, that if you are dealing with an MSME and if you have purchased any goods, availed any services from an organization which is classified as a micro or a small enterprise, then the payment has to be made within 15 days. This 15 days can be by a mutual agreement extended to a period of 45 days. Okay. Any mutual arrangement extending it beyond the 45 days is what? So your vendor and yourself can maximum agree to a term period of 45 days. First and foremost, just ensure that all the dealings that you have done with MSMEs have that arrangement or an internal communication where you agree that the payment terms are extended to 45 days and the payment terms as per MSME Act of 15 days shall not be applicable to the transactions that you do. Apart from that, making the payment beyond 45 days, if you are making the payment within the same year, no issue, कोई disallowance होना ही. So the whole issue basically arises with respect to the bills that you have received prior to 15th February and which are outstanding as of 31st March. You need to really have a look at those things so that you are not in a situation where as on 31st March, you have adjusted your profit, you have adjusted your tax liabilities, but at the end, you have come to a conclusion where say a purchase of 1 crore gets disallowed. I agree, it's a tax neutral transaction. अगले साल जाके आपको उसका benefit मिल जाएगा as and when you make the payment. But it will deter and distort your tax planning and your cash flow. आज suddenly अगर 31st March के बाद आपका 1 crore का disallowance हो जाता है, that will entail a tax liability of close to 40 lakhs. Surcharge, सब चीजें मिला के, that will entail interest on account of deferment of payment of advance tax. So it might disturb your cash flow and
unnecessarily interest might be charged on that. So you have to be very sure that these transactions are being duly adhered to. If there is that kind of a payment, unfortunately, you don't have a choice. You have to make the payment beyond within that time frame. I'm facing a lot of issues now wherein information is being shared with the income tax department from other departments. Say GST, say any other inquiry which has happened under any other law for some other person जिससे आपका transaction रहा है. So we all are case, Mr. Jain had briefly brushed upon the subject that somebody has given the statement that I was merely providing bills. As such, the transactions of sales, whatever has happened, are not genuine. Such a statement has been given by the person. Unfortunately, you have transacted with that person. I'm not here to discuss whether that transaction was genuine or not. I am here now at a situation where you might have transacted with that person, you might have done the transaction, which might be a genuine transaction. I'm not doubting that. I'm not here to doubt that. I never doubt my clients. So if you have transacted and something which has been duly supported by bills, vouchers, eBay bills, all the statutory documents, I would give that more weightage versus the statement given by a third person. So we are receiving a lot of notices where GST ने किसी के साथ inquiry की. For some reason or the other, that person goes to the GST department and says that everything is bogus. And now you have done a purchase of 5 crores from that person. You are getting a notice from the income tax department that as per the information available, आपने 5 करोड़ का परचेज किया है मिस्टर सो एंड सो से. मिस्टर सो एंड सो ने हमारे पास आके बोल दिया है कि वो सिर्फ बिल देता था. All the transactions are bogus. We need to reopen your case and we need to add this particular amount of bogus purchases to your income. This is, trust me, a very, very precarious situation. If you are receiving such kind of things, such kind of notices, or even if you have an idea that such kind of an inquiry is going on with respect to any of your suppliers, please start approaching your legal counsels immediately. The reason is, today I received a notice wherein the statement was recorded by the GST people way back in 2022. And it is on the basis of that statement that the income tax is reopening your assessments now. Now, when I go to ask as to where is this person who has given the statement, unfortunately, at this point of time, you guys are not able to trace that person. Now, it is a very precarious situation because at the end of the day, usko kuch nahi hona hai, but aapka 5 crore ka addition pakka hai. Because a statement which has been shared by the GST authorities, how are you at this point of time going to say that that statement is false? So you're going into a very, very extreme legal litigation. You don't want to be in that position. So apart from such statements, I'm not concerned with statements, even otherwise what I'm saying is, please ensure, strengthen your accounts department wherein you are ensuring that you are able to prove independently without the help of a third party that these purchases were actually made. Many times I'm facing cases where you have had instances कि आप eBay bill वगैरह सब मेरे को बताया उन्होंने, but unfortunately it has been sent to a third person. The consignee was someone else. How do I prove that this transaction is a genuine transaction? You have not even received the goods. So ensure that whatever documentation is required to be done so far as these transactions are concerned, you have it very, very strongly and very, very accurately, so that in future, I should be able to prove that my purchases are these. I have my bill. I have my eBay bill. I have my transport receipts.
I have my weighing receipt, the goods have been weighed. I have the copy of the goods coming in, whatever input documents you keep. All these documents are in place. Vis-a-vis my sales. The goods that I purchased, I have subsequently sold it also. So all my sales are into place, which cannot be doubted. Now, the question is, would law give more weightage to all these documents that I have kept, or the statement of a third person which has been recorded behind your back, जिसका आपके पास कोई control नहीं था, and it has been recorded by a third person? So now the question comes, what would be given more weightage? This is what we professionals expect all of you to help us out with. If you are able to help us out with, we can definitely create a case out of it, and at least we have a fighting chance so far as this draconian litigation is concerned. And unfortunately, this litigation is here to stay. In fact, again, Jensen would help us out. My wife looks after the GST compliances, and I was very surprised recently when she came to me and told me that while filing the annual return in one of my clients, the input which is there as per I think the GSTR2 is automatically imported into it, and two vendors का input system में block हो चुका है. So while importing, despite I can't do anything about that. मेरे पास वो figure ही नहीं आ रहा है. Suppose there was an input of 1 crore. There were two vendors, एक 6 लाख का, एक 4 लाख का ITC. Import ही मेरे system में 90 लाख ही हो रहा है. I can't do anything about that. When I went and checked it with the department, I was told that ये दो are deemed to be bogus. इसका retrospective cancel हो गया है registration. Retrospective cancellation होने के कारण उनका सारा input जिन लोगों को गया है वो block हो चुका है. As such, आपका block कर दिया. Now, this is an absolute draconian law. Now, the department did not even give you a chance to represent your case. Had they given you a notice कि हम Mr. A का input block करना चाह रहे हैं, आप जाकर उनको बताते कि भैया मेरे पास bill है, ये है, वो है, everything that we just discussed. Unfortunately, it is already blocked. So good luck to you. Now the demand is 100%. Whenever you will find the return, the assessment is definitely going to happen. They are going to raise the demand of 10 lakhs. Now good luck to you fighting it before the commissioner appeals, fighting it before the tribunal, and fighting it before the high courts in future. So just if that is inevitable, we will fight it. But for that, we would need help. And that help is something that we expect from all of you. If you have any time come across that kind of a case where you are aware that फलाने आदमी ने कोई statement दे दिया है जिसके कारण आपका input डिसअलाउ हो रहा है या GST को उसने बोल दिया है bogus है. I have personally fought cases where luckily that person was traceable. So during the assessment, we find an affidavit of that person saying that I did give that statement. So if I have a turnover of 5 crore and Mr. A को मैंने 50 लाख का सेल किया था, 4.5 bogus है, 50 तो genuine ही है. So there can be an entity which is doing bogus transactions. I'm not denying that. But does it imply that 100% the transactions are bogus? No. There can always be a situation where 10% is genuine, 90% is bogus, so on and so forth. So if that is there, please ensure that you're able to take that documentation right now. For private companies, some of the other thing that I really wanted to put light on, which I have never done it in the past. Private companies, as you're aware, Bagaria sir would guide us better in this. CSR is a very, very important responsibility that the private companies are required to spend on corporate social responsibilities. There are specific companies for which it is mandatory to spend a certain amount as corporate social responsibility. It's a lovely gesture, according to me. If all the companies are able to do that, it's wonderful. One thing that I always suggest my clients that in case you have a company which is covered under CSR, it is very good brand building exercise
that you do it. And if you are able to do it in a way which acts as advertisement also for you, it's wonderful. To plan it better, I suggest my clients ki every company which is having CSR responsibilities, try and open a charitable trust in your family name. Get that charitable trust registered under Section 12A of the Income Tax Act. There is a restriction कि first 3 years आप उसको CSR नहीं कर सकते, and after the 3 years is over, that your trust is in operation, you have to just file a simple form with the ROC. Then your charitable trust becomes eligible to receive CSR donations. So from your company, give CSR donations to your own trust. Make it in the name of your ancestors, please. Give it in the name of your charitable trust, your own charitable trust. Take the benefit of ATG deduction in your books of accounts as a company. That charitable trust can in turn do whatever charitable activities you want to do. So personally, I feel that is a far better way of doing CSR activities. So if you can plan it, start planning it now, because it is going to take you 3 years to come to the point where your trust will become eligible for CSR activities. These were some of the things that I had not dwelled upon in the past. And so I thought that definitely it's worth sharing. We are already past the time. I'll just very quickly go through the regular points that I used to stress upon, so that we can just have a quick rewind of the past seven years lectures that I have been given. First and foremost, we are almost on the verge of payment of advance tax. Please ensure that you pay the advance tax properly, not excessively. I will emphasize always, don't be in a situation where refund is expected. Please pay only to the extent of 80%. Pay it at the time of self-assessment is much better than getting your refunds stuck with the income tax department. Please ensure all your investment limits are duly utilized. Mediclaim, LIC, PPF, so on and so forth. You all are very, very well versed with those things. One thing we professionals cannot strive enough. We need a tentative balance sheet as on 15th March. This, I think every CA should make it mandatory for all the clients. We need a personal and a business balance sheet as on 15th March. If you want us to help you. If you don't, we are okay. So we can only help you if you help us. It's as simple as the saying goes for law. So if you can give us a tentative balance sheet, it can help us plan 10,000 things. Your advance tax is one of the things. What Mr. Bagadia said, many transactions which are barred under the Companies Act. These transactions, see, I never blame any of the clients, because in the heat of the moment, in the pressure of doing business and making profits, you might have entered into certain transactions जो legal नहीं थे या जो prohibited थे. And nobody expects you to know everything by heart. That's our job. But अगर कभी ऐसा हो गया है, let us help you rectify it at the earliest. Let the mistake not continue, and let it be rectified as soon as possible. Under any case before 31st March. So that at least the balance sheet that you have of 31st March does not on the face of it show the glaring mistakes committed or the glaring illegalities committed. Please try to rectify that as early as possible. One other thing I always insist, if you are having disputed bills with any of the parties, just because you will be reviewing it for MSME anyhow, just see if there is any payment which has not been made by you on account of any dispute. If there is, strong suggestion to you, please give a small email, one-liner email to the other party that we have received a so-and-so bill for so-and-so amount. However, the same is not acceptable to us on account of the same suffering from whatever defects. The goods were not right, etc., etc. This one-line email will safeguard you against any legal claim in the future, including the other party going to NCLT against you. The provisions of Insolvency and Bankruptcy Code. This one-line email constitutes a dispute between the parties. This dispute will not be entertained at any legal forum.
This is one of the things that you should preferably do it. Thirdly, one thing that always goes that we are not able to check is whether we are deducting TDS on payment of interest made to NBFCs, non-banking financial corporations, Tata Capital, Reliance Capital, etc., etc. Unfortunately, most of us go under the wrong impression कि NBFCs are banks. Banks are exempt. जो हम CC limit वगैरह बैंक से लेते हैं, which are nationalized banks, those TDS काटने की आपको जरूरत नहीं है. But so far as NBFCs are concerned, non-banking financial corporations, उनको आप जो भी interest दे रहे हैं, उस पे TDS is mandatory. If you are not deducting it, the answer is that you will have to make sure that the disallowance will be there. आप सब अभी समझ गए होंगे one of the important disputes जो unfortunately we assessees lost at the Supreme Court was with respect to the PF and ESIC dues. So PF and ESIC जो हम employees से collect करते हैं, अगर हमने उसे due date पे नहीं भरा, which is I think 15th of the following month in most of the cases, वो वाला amount जो आपका है will be disallowed and added to your income and वो life में कभी आपको allow नहीं होगा. That is gone forever. It's not like जो हमने अभी 43B MSME वगैरह की payments देखी जो बाद में जब payment करोगे मिल जाएगा deduction. It's gone forever. So come what may, I would suggest two things have to be mandatorily complied with as an entrepreneur. One is government dues you cannot keep with you. The law is very strict. You cannot use government dues for your own benefit and payment of the same in future ब्याज के साथ doesn't absolve you of your crime. वो तो आपको देना ही है, but you are never entitled to use government's money for your own benefit. That is why the income tax department has become so strict कि इवन महीने महीने भर का अगर टीडीएस पेमेंट में डिफॉल्ट आ रहा है कि आपने लेट भरा, प्रोसिक्यूशन इज बीइंग फाइल्ड. प्रोसिक्यूशन इज अ क्रिमिनल केस. इंटरेस्ट पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो भरना ही है. बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज मेकिंग श्योर टू फाइल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द एसएससीज जो टीडीएस लेट भर रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से, being a counsel, you don't want to fight the litigation of TDS prosecution. District court में file होता है, every hearing you are supposed to be present over there. Let's not get into that. Please ensure all government dues are paid on time. Clean your balance sheets as much as possible. Capital gains, March आ गया है. I always say कि अगर आज की डेट पे कोई प्रॉपर्टी बेचना है, रुक जाओ. Sell it in the first week of April. Get more benefit of indexation और टैक्स पे करने के लिए आपको एक साल और मिल जाता है, अगले साल आप पे कर सकते हैं. In case there is a difference in valuation, make sure you have a valuer's report with you so that in future whenever the tax demand comes, you are in a position to fight it. So I think the time has I've already extended it. It's always a great pleasure coming and interacting with all of you and sharing my thoughts. Thank you for this opportunity. Thank you for your patience here. Thank you so much. Thank you, Kapil. एक कहावत है, an apple a day keeps a doctor away, but if a male doctor is smart, keeps the apple away. Same way, when Kapil speaks, ऐसा लगता है litigation कर ही लो, कपिल संभाल से बैठेगा उसको. And बहुत honestly बहुत सारे नए audience में presence है, डायस में भी कुछ present सर है और शायद मैंने पहले शेयर भी किया. कपिल जब मोदानी सर ने कपिल जब आईटीटी में ऑर्ग्यू कर रहा था तो कपिल ने सीधा वो केस उठाया और छोड़ के माय लॉर्ड द केस इज उसके बिगिन करने से पहले ही जज ने कहा एक काम करो फाइल आप अलग रख दो सिर्फ ऐसी बात कर लो. And that's a real story. And friends, the forum is now open for the question answer. You can take it forward. Question answer लेते हैं जो भी क्वेश्चंस होंगे. या कोई अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहेगा तो कर सकते हैं. एमएसएमई का जो डेफिनेशन है वो ट्रेडर के लिए है कि इंडस्ट्रीज के लिए जो 45 डेज और 1 हाँ ट्रेडर आउट है.
ट्रेडर्स क्लियर कट आउट है, फ्यूअर ट्रेडर्स क्लियर कट आउट है. Kapil, can you throw more light on that? The principal view on this is that manufacturing and service sector, only those are getting covered at this point of time. Traders, by the look of it, are at present seems to be out of it. Traders से यानी खरीदी आपने जिससे किया. It seems so, but I really doubt whether this interpretation, at least in the initial years, department is going to accept. I really feel that they are going to. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने माल खरीदना बंद कर दिया है. नहीं, because क्या है, there is another section which is referred जो time limit specify करता है, which is section 15 of the MSA. जब हम 15 पढ़ते हैं, वहां पे supply of goods भी word vaguely mentioned. So it is, don't get into that litigation. But prima facie सबका व्यू ये है कि आज की डेट पे ट्रेडर्स आर आउट. मैन्युफैक्चरर से आप खरीद रहे हो, विच रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर और अ सर्विस प्रोवाइडर, वहां पे कवर हो रहा है. बट टिल द टाइम दिस reaches litigation, I'm sure income tax department is going to take a very wider view in this, and most likely they are going to cover traders also. Yeah, the matter actually 43BH में one thing is very sure कि lot many disputed litigations are going to be there. एक बड़ा confusion उसमें ये था कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस या जो MSME सिर्फ रजिस्टर्ड है वो लोग ही कवर होंगे, या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो MSME में रजिस्टर्ड नहीं है वो लोग भी कवर हो जाएंगे. अब टेक्निकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला तो हमेशा मतलब जो उनको सूट करता है वो निकालेगा. उसमें बहुत क्लियर करे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात नहीं बोल रहा है. इनकम टैक्स एक्ट इज कंसर्न है. अब वो ITAT हायर लेवल पे तो कोर्ट जरूर बोल देंगे कि रजिस्टर्ड है तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. बट टिल दिस इज हेल्ड बाय द कोर्ट या लिटिगेशन आएगा तब की बात है. टू बी ऑन अ सेफर साइड, TDS मतलब उनका पेमेंट जो है टाइम पे कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा, तो वन कैन अवॉइड द डिसअलाउंस ऑन दैट पार्ट. So, sir, Yes, I am CA Satish Gupta. महेंद्र सर आपसे सर GSTR 1 का टाइम तो 11 तारीख है सर. GSTR 1 का टाइमलाइन 11 एवरी मंथ रहता है. सो पर 50 डेज ऐसा डिले का पेनल्टी भी प्रोविजन है उसमें. अगर हमने डिले फाइल किया उसमें एवरी डे का, पर उसकी वो डिले की पेनल्टी कैसे भरते हैं वो आएगा नहीं? के लिए कभी मांगा नहीं है मांगा नहीं है. और आपको चल रहा है. हाँ सर, 8-9 दिन जैसे I am coming from an NBFC, we have 7 state operations, तो 7 GST या 1 हो गए, 7-8 दिन अभी का तक डिले रहा. GSTR 1 पे कैसे अपडेट कहीं लगा नहीं रहा है. लॉ में है हाँ. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है. नहीं, ठीक, थैंक यू. yes. Sir, Bagadia sir. Sir, I am getting a lot of notices from clients, मतलब कि PF ESIC के लिए भी वो लोग डिपार्टमेंट जिस कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय भी नहीं है, जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है, उन लोगों को नोटिस भेज रहे हैं कि आपने PF ESIC का कंप्लायंस नहीं किया. सो इन दैट केस व्हाट शुड वी डू? मतलब वो एलिजिबल भी नहीं है एक्चुअली, मतलब कोई एम्प्लॉय नहीं है तो किसके लिए करेंगे? Who is the source of what is the source of कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है, कोई एम्प्लॉय तो है नहीं. So I think immediately we should go to PF department and cancel your registration. ओके कंपनी का कंपनी इनकॉर्पोरेट साथ में आजकल ये सब सर इसमें एक एक्सटेंशन और देता हूँ कि GST नंबर भी साथ में आ जाता है. GST नहीं है. GST भी आता है. अच्छा हाँ, GST भी आ रहा है. अगर आप वहाँ पर टिक कर देगा तो GST के भी आता है रजिस्ट्रेशन, और नहीं आ रहा है. और सेकंड उसमें जब प्रॉब्लम आती है कि आपका GST रजिस्ट्रेशन में कोई क्वेरी आती है तो आपका MCA बोलता है हमको पता नहीं, GST वाला बोलते हैं हमको हमारे पास कोई डिटेल आई नहीं है. तो ये भी एक हो रहा है, तो उसमें काफी प्रिकॉशंस लेना चाहिए. इसमें ऑप्शन होना चाहिए whether you want PF registration, you want GST, ऑप्शनल होना चाहिए. वो ऑप्शन है. तो mandatory it is. ना वो ऑटोमेटिक आता है. बिगिनिंग हुआ था 10 नंबर से बिगिन हुआ था उन्होंने, और धीरे धीरे सब बोनस दे दे रहे तो हैं. गलत है ना. ऑप्शन होना चाहिए, वो चाहिए कि नहीं चाहिए. जो इसको इनकॉर्पोरेशन का एग्जाम immediately उसमें ध्यान देना चाहिए. डिपार्टमेंट कैंसिल Yeah. सर अनदर क्वेश्चन फ्रॉम जैन सर. सर GST में भी आप समझिए एप्लीकेशन डालते हैं, बाद में वो स्क्रूटनी नोटिस तो फॉर श्योर है, मैंडेटरी है, तो उसमें वो लोग PT के लिए भी मांगते हैं. अब मेरा क्लाइंट है, उसने 2.5 लाख भी नहीं कमाया है, जस्ट बिजनेस चालू कर रहा है, तो वो PT क्यों ले? प्रोफेशनल टैक्स एक्ट आपने रेफर किया है. सर इतना क्लियर मैं नहीं नहीं, कर रहा, इसलिए आप उसमें करीब 22-23 कैटेगरीज हैं इसमें हमको एनरोलमेंट करना पड़ता है. तो मैंने बिजनेस चालू किया, नागपुर में चालू किया,
तो एटलीस्ट गुमास्ता तो दिया। तो सबसे पहले गुमास्ता कैटेगरी में लगे, मेरे को नंबर की आवश्यकता भले नहीं है, मेरा जीएसटी का टर्नओवर दिल भी है, गुमास्ता दिया, गुमास्ते के बेसिस पे भी एनरोलमेंट पीटी का कंपलसरी। तो पीटी अलाइड लॉ में उसमें दिए कॉलम ये कि अलाइड लॉ में जहाँ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर देने हैं। देखे ना कपिल कपिल क्वेश्चन आपका बेटा। सर वो ऑटो जनरेटेड मेल्स आ रहे हैं हमारे क्लाइंट को, हम डीलिंग विद कंपनीज, तो ऑटो जनरेटेड मेल आ रहे हैं पीएफ डिपार्टमेंट से कि आपको यू आर नॉट कंप्लाइड विद पीटी पीएफ एंड ईएसआईसी फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स एंड यू आर जो पेनल्टी भरना है अमाउंट नहीं आ रहा है। बट फिर हम लोग पीएफ डिपार्टमेंट गए तो दे आर सेइंग कि हमको तो नॉलेज ही नहीं है, आप मुंबई बात करिए। फिर मेरा एक कंसल्टेंट है हिंदा का पटले पीटीपीएफ जो देखता है, बोले सर एक लेटर भेज देता है अपन कि वी आर नॉट एलिजिबल अंडर पीटीपीएफ और उसका वो स्पीड पोस्ट का रखना। तो दिस इज द ओनली थिंग वी कैन डू। बट एक ही दिन में हमारे 4-5 क्लाइंट के फोन आ गए, यार ये कौन सा मेल आया है, अब तो एलिजिबल ही नहीं है, 19-20 लोग ही नहीं है, 2-4 लोग काम कर रहे हैं। हमको भी एकदम तो दैट कैन बी डन क्या कि एक कोरियर भेज दें, और क्योंकि यहाँ के पीएफ डिपार्टमेंट को कुछ नहीं पता है। स्पीड पोस्ट प्राइवेट स्पीड कोरियर। हाँ ना सॉरी स्पीड पोस्ट से रजिस्टर्ड आईडी करके, सो दैट कैन बी डन। एक कंसल्टेंट बोल रहे थे कि एक ही दिन में हमको 4-5 लोगों के फोन आ गए यार, और वो ऑटो जनरेटेड मेल है सर, हमने सोर्स देखा अच्छा, ऑटो you can't जनरेटेड। reply to the email. हाँ If you reply email, नहीं किसी को दो reply reply आ करना रहा है, है। हाँ, वो दैट इज एन ऑटो जनरेटेड ईमेल, तो अब वो सिस्टम कर रही है। और ऐसे तो 30-40 कंपनीज हैं, बट 4-5 लोगों को ही मेल आया है, बाकी किसी को नहीं आया। तो वो तो दैट कैन बी डन। Yeah, please do. एक लेटर लिख के भेज देते But address है क्या उसका? हाँ पीएफ डिपार्टमेंट मुंबई का हाँ, ऑप्शन है। just- नागपुर में दे आर सेइंग कि हमको तो पता ही नहीं है, हम कहेंगे कि Please, हमने नहीं भेजा। मेकिंग मार्क मीनिंगफुल उनके लिए है, डिपार्टमेंट के लिए, उन्होंने बहुत सारे कंकर फेंके, कुछ तो लग जाएंगे। ठीक सर, मैं कोरियर सॉरी स्पीड पोस्ट करके इसमें तो ये भी है कि यू कैन ओपन द अकाउंट, बैंक वाले पास है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, वी कैन नॉट ओपन द अकाउंट। जबकि बात है यू कैन ओपन द बैंक अकाउंट, आपका नाम देना पड़ता है, बैंक के पास जाते हैं वी कैन नॉट ओपन द अकाउंट, आप फिर से पूरी केवाईसी। हेलो सर, हिरानी सर के लिए क्वेश्चन था, जो एमएसएमई को पेमेंट का नया सेक्शन है, इसमें अगर सेलर अपने बिल में प्रिंट नहीं करता उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, या वो रिटर्न कम्युनिकेट नहीं करता बायर को, तो भी क्या बायर रिस्पॉन्सिबल है? See, there is a इसमें normally what is happening is that all the companies are giving जो हम KYC करते हैं, वो KYC आप अपने कस्टमर्स का करना चालू कीजिए। तो बहुत सारी companies have preset format where they are writing to all their customers to confirm whether you are registered under MSME or not. And आप वो एक सबको लेटर डाल दीजिए, एक उसमें कंडीशन डाल दीजिए, if we do not hear from you, it will be assumed that you are not registered under MSME. वो एक लेटर अपने पास बना के रख लीजिए, उन लोग नहीं देते हैं, so how can you be liable for that? But सभी सप्लायर्स को भेजना पड़ेगा। नहीं तो गवर्नमेंट ऐसा करना चाहिए, अगर इट इज मेंशन द बिल इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए सर ऐसा लॉ में इसमें भी अगर अगर कम्युनिकेट नहीं किया इन रिटर्न सेलर ने, तो यानी बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। it is, see, you can't have it as a hard and fast thing. But yes, at the end of the day, the question comes as to how are you supposed to comply with this? जब तक आपको पता ही नहीं है आप कैसे comply करेंगे? So then the question is कि you have taken efforts to comply it. आपने effort लिया है फिर भी नहीं आया, तो then nobody can fault with you. But आप effort ही मत लो और बोलो कि जब तक वो नहीं बताएगा मैं नहीं करूंगा, that might go against you. That is the only. थैंक यू। इसमें लेकिन प्रीतम भाई, मेकिंग मार्क मीनिंगफुल लेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ रही ना। हाँ भी आज की डेट में तो जब सीसीडी बनाए तो उसमें 43 प्रीतम भाई भी मेकिंग मार्क मीनिंगफुल का एक और पार्ट है, सीएचपी में भी हो रहा है बुधवार को। प्रीतम भाई, कपिल भाई जो आर आल्सो द स्पीकर्स हियर। कपिल भाई आपके लिए क्या पता कि 43 PH इसमें जैसे आपने मुझे बताया या समझा मैं भी कि हम लोगों को जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग रहेगा उस पे पे करना है, वो डिसअलाउ होगा। आई हैव 2 points, वन थिंग, मैंने किसी से 50 लाख का माल खरीदा, 9 लाख रुपए का जीएसटी लगाया, मेरा 59 लाख रुपए पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, मेरे P&L में खर्चा मैंने 50 लाख का डेबिट किया, 50 डिसअलाउ होगा। सेकेंडली, द बिल इज फॉर फिक्स्ड एसेट्स, द बिल इज फॉर फिक्स्ड एसेट्स,
परचेज फ्रॉम एमएसएमई इंडस्ट्री, मैंने उससे कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया या दिस टाइप ऑफ थिंग्स लिया, No disallowance. so that should, I think so, we should be clear to you, that's just I want to No reconfirm. disallowance. If it's for only thing which has been debited to P&L account and to the extent it is debited to P&L account, अगर मेरा जीएसटी का आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है उसका Doesn't 59 लाख में से 50 दे चुका हूँ, तो एटलीस्ट ये तो बोल सकता हूँ कि भाई ठीक है बेसिक पे कर दो, रोकना भी है तो जीएसटी एलिमेंट रोक लो, that will not be disallowed for the point. अगर कुछ चल रहा हो, अगर मेरा पेमेंट टर्म जो है Thank you. 1080 10 ऐसा है, उसको मेरे को 10% रोक के ही रखना है, वो भी जो कमीशनिंग के बाद उसको देने का रहा होगा एग्रीमेंट रहे तो सर। देखिए डिपॉजिट नहीं है, ये बोल रहे हैं कि खर्चा क्लेम कर लिया बट 10% एज पर पेमेंट टर्म्स मेरे को बाद में देना। परचेज मैंने पूरा किया है, कंडीशन की आगे की 10% It is not security deposit. 10% is was the consideration. सर एक्चुअली क्या होता है, वो कमीशनिंग के बाद देना पड़ता सिक्योरिटी डिपॉजिट करके ट्रांसफर कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। पीएनएल से हटा रहे ना, अगर पीएनएल में खर्चा क्लेम कर रहे हो पीएनएल तो रहेगा ना, हाउ इज इट एक्सपेंसेस देन परफॉर्मेंस इज शोन, परचेज तो पूरा है, परचेज तो पूरा है सर मेरा। हाँ तो परचेज आपका पूरा है, 10% आप पे नहीं कर रहे तो फिर बाय 10%, फिर तो हर जन उठा के उसको डिपॉजिट ही दिखा दो। इनकम में ही दिखाएंगे ना 10%। नहीं ना, इसमें देखिए मेरे को लगता है कि बहुत सारे मैटर ऐसे रहेंगे ना जो डिस्प्यूट एंड लिटिगेशन रहने ही है उसमें, बट नेचर ऑफ पेमेंट चेंज हो जा रहा है उसमें। what the law says that whatever expenditure is to whatever expenditure you are claiming which pertains to the purchases or the seller is an MSME, unless you pay it within the time prescribed, it has to be disallowed, and the time prescribed cannot be extended to more than 45 days. Whatever nomenclature you want to give, what has happened is आपने 10% deposit taken, you both have come to a conclusion that you are deferring the payment of the 10% amount to a period more than 45 days. Where does the nomenclature come into picture? Now, it categorically says that any arrangement between the buyer and the seller deferring the payment to more than 45 days will be void. आप कर लो ना, arrangement करने के लिए problem नहीं है, but खर्चा नहीं मिलेगा. So even by doing a deposit arrangement, what you actually have done have deferred it to a period more than 45 days. And now the law says that any arrangement between the seller and the buyer extending it to a period beyond 45 days is void. That will not help you. ऐसा ना होगा. इसमें एक और पार्ट क्या है शायद पार्टी को हाँ वो पीएनएल से हटा दो, क्रेडिट सेक्रेटरी डिपॉजिट में करा दो, वो कर तो पीएनएल से हट गया ना, खर्चा नहीं हुआ ना. पीएनएल में तो डेबिट कर दिया है, तो रहेगा, ड्यू पेमेंट पीएल में तो रहेगा ये ना, हाँ तो पीएनएल से आप कैसे हटाएंगे? नहीं, पीएल में से नहीं हटेगा, डिपॉजिट सिर्फ क्रेडिट से हटके सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं उसमें से फिर भी मार देते हैं Sequent deposit कैसे? कभी उसमें सिर्फ एक एंट्री एक मैं बताता हूँ इसमें होने वाला क्या है सर, मैं इसको थोड़ा सा कवर अप कर रहा हूँ। क्रेडिटर को डेबिट मारा और सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्रेडिट कर ठीक है ना, फिर वो तो ठीक है ना कि आप उसके जो डेटर अकाउंट को आप रिमूव कर रहे हो फ्रॉम ट्रांसफरिंग इट टू द, हाँ दैट इज ओके, दैट यू कैन डू, दैट इज ओके. एज पर द एग्रीमेंट इट इज ट्रांसफर टू दैट यू कैन डू कि आपने क्या किया, जो अमाउंट दिख रहा है उसको ट्रांसफर करके आप इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट में उसको ट्रांसफर करके ले गए, दैट यू कैन डू, दैट इज परमिसिबल, दैट अकॉर्डिंग टू मी इज परमिसिबल. will not show the creditor, it's a security deposit. That you can do, yes, that can be. myself ये नीरज जैन, Yeah. कोई एसएससी अगर नए रेजिम के लिए ऑप्ट कर रहा है और 50 लाख से अबव उसका इनकम है, तो एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट फाइल करने के लिए उसका जो थ्रेशोल्ड है वो जीटीआई रहेगा रिटर्न में। टोटल इनकम है, टोटल इनकम इफ exceeds 50 lakh then you have to give 8 lakh, otherwise not. में चैप्टर 6 से आइटम्स भी है तो न्यू रेजिम होने के बाद में 50 लाख की इनकम आफ्टर जीटीआई, मतलब नॉट जीटीआई इट्स टीआई, Total income. टोटल इनकम. बट इज ऑप्टिंग फॉर न्यू रेजिम, सो व्हाट न्यू रेजिम नहीं, के लिए उसको नहीं आपके जो आईटीआई में जितने टोटल इनकम बता रहे हैं ना दैट विल बी New regime is only for the purpose of taxation rates. It doesn't change any of the other provisions. Any more questions? Or we may conclude. हाँ, साकेत के बिना प्रोग्राम yes, please.
एंड प्रीतम भाई एक आधी पॉइंट आपका भी ऐड कर देंगे जीएसटी में प्लीज या सके सर आजकल बैंक्स जो है एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग सीए सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये प्रूफ करने के लिए हमारे को अकाउंट ओपन करना है फलाना कस्टमर का, तो आप सीए का सर्टिफिकेट लेकर आओ कि कस्टमर का बिजनेस चल रहा है। सीए रिटर्न दे देंगे सबसे नहीं, बट बैंक वाला बोलता है कि सीए सर्टिफिकेट तो अकाउंट ओपनिंग के लिए सीधे फॉर ओपनिंग ऑफ सर करंट अकाउंट, फॉर ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट Mr. A is doing this business. Mr. A is doing this business. Why should CA or why can CA give कि ये बंदा बिजनेस कर रहा है? ये HDFC का मैनेजमेंट है, Axis का मैनेजमेंट। Many banks have asked for this. HDFC बैंक, Axis बैंक देना बंद कर दिया नहीं, मैं भी नहीं देखता। हमारे पास से तो नहीं दे रहे। देगा कैसे? बेस्ड ऑन रिपोर्ट दे देगा। नहीं, वो बैंक वाला बोलता है कि बोले सीए सर्टिफिकेट ही चाहिए हमारे को अकाउंट में। क्या दे रहा है? आपके नहीं, दो proof लगेंगे। नहीं वो नहीं लेता। वो उसको सर्टिफिकेट इज वेरी क्लियर। वो लिखता है कि भैया आई नो दिस पर्सन And he is प्रोप्राइटर ऑफ दिस बिजनेस, उसका ये बिजनेस है, इस जगह पर है। फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे रहा हूँ। फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सीए सर्टिफाइड क्यों चाहिए? वो भी उसको यूडिन नंबर जनरेटेड यूडिन चाहिए आपका सीए। यूडिन किस चीज का? और मैं कहाँ से ऑथराइज हो जा रहा हूँ ये प्रूव करने के लिए बंदा बिजनेस कर रहा है। Sir, it's not a professional responsibility. One last question we'll take up. Yeah, please. Sir, question is regarding TDS. These are last second quarter में हमको नोटिस आया था कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका पैन से आधार लिंक नहीं है। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए सर, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इसका। क्या करोगे? लिंक नहीं है so that बट प्रॉब्लम ये है सर, लास्ट तीन साल से हमारे पास वो काम कर रहे हैं, 3 साल से कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। अभी रिटर्न चले गया सेकंड और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया, तो रिटर्न नहीं जाना चाहिए था। हमारा ये क्वेश्चन है, रिटर्न जाना नहीं चाहिए था, टीडीएस का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? अगर आपने कुछ रूल्स लाए हैं नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए प्रोसेस? रूल्स लाए हैं, आपको भी तो रूल्स पता है ना? नहीं, rules but- आते हैं। सर प्रोसेस नहीं करेंगे तो थोड़ा सर तो लास्ट ईयर तो हो गया था ना पूरा पर। हालत तो अभी तो फ्यूचर होगा कि आज ये नहीं हुआ सर ये वाली इसमें वाला रिटर्न नहीं जाना चाहिए था। अगर सिस्टम ने डिफॉल्ट करना चाहिए उसको कि उसका पैन लिंक नहीं नहीं, आधार नहीं, ये तो लिंक डिफॉल्ट करके तो भेजेगा कि कम काटे नहीं, बाद में भेजेगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि रिटर्न फाइलिंग के पहले उसने दिखाना चाहिए था कि ये प्रॉपर आपने भेजा है, इसको प्रॉपर्टी कर दो। सर मेरा ये कहना ऐसा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ तो भी नोटिस आना चाहिए था कि आपका इसमें प्रॉब्लम अभी आया ना? उसके बाद आया। इसके ऊपर कुछ तो भी होना चाहिए। No, but why do you Sir, want to wait for that? Kapil, just a moment. Sir, इसके आंसर में sorry for Please, interrupting you. आपका जो इशू है, VA has taken up the issue and Ministry of Finance को भी लिखा है, CBDT को भी लिखा है and we are waiting कि इसके ऊपर कुछ आंसर है। आपकी जो हार्डशिप है, जेन्युइन हार्डशिप है, सबको आएगा। हो रहा है, सबको but right now we have to face it. We don't have anything on that, but VA has given a representation, a strong representation for this on the You know subject. what you should do? आज की डेट पर तो उसको लिंक करवा दो। whoever the person is जिसका लिंक नहीं है। लिंक में भी प्रॉब्लम आ रही है कि आधार और पैन नंबर पैन नेम उसका मैच नहीं है। हाँ, तो वो ठीक करना पड़ेगा। You know what you should do? What about the interest? Sir, Okay, narrate right. the question last. Don't pay that. Don't pay that. If I was in your situation, get the PAN and that link. So it is a deficiency. It is a defect. Okay. Now what you are doing is you have rectified that defect. आज की डेट पे the defect stands rectified by that person. So till the time we get a clarification, don't pay that, contest that in appeal. So there has been, see, this is a very new type of litigation, but there has been many cases where any demand on account of a defect which has been subsequently rectified and it is in order. Many times the courts have held that the demand should not be held to be sustainable. But that is the best you can do at this point of time. But आज उसका लिंक करवा दो। सर हमारे सीए ने एक सॉल्यूशन बताया। हाँ प्लीज। इनकम टैक्स की साइट पे जाओ और उसमें एक ऑप्शन है टीडीएस और कैश विथड्रॉल। इनकम टैक्स .gov.in साइट
उसमें इनकम टीडीएस ऑन कैश विथड्रॉल, उसमें एक ऑप्शन है, उसमें उस ऑप्शन में जाकर उसका पैन नंबर डालो, जिस पैन नंबर को आपने वेरीफाई करना है कि ये लिंक है या नहीं। हाँ मैंने वो चेक कर लो पहले हाँ, check कर। उसमें उसमें अगर वो नॉर्मल टीडीएस रेट बताता है तो इसका मतलब उसका नहीं वो normal देखो rate से- यूटिलिटी ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यूटिलिटी इज ऑलरेडी देयर इन द पोर्टल, जिससे पता चल जाता है normal rate लिंक से है या नहीं। काटना है कि higher rate से काटना है, वहां से चेक कर सकते हैं। नहीं वो है, और यहाँ पे अगर बहुत सारे जिनके बल्क का डिडक्टी है ना, नागपुर की कंपनी है टैक्स एपीसी करके, हिमांशु छोटिया जी की कंपनी है, उन्होंने एक प्रोग्राम भी डिजाइन किया है जिसमें बल्क में से आप डाल दीजिए, यू कैन गेट इट डिटेल्स। अभी फिलहाल वो वीआई के साथ हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, वी आर इन डिस्कशन कि फ्री ऑफ चार्ज मेंबर्स के लिए वो वाला पार्ट, वो सॉफ्टवेयर जो उनका बनाया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब मेंबर्स को। तो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग इट आउट। तो मोस्ट प्रोबब्ली सचिन अगर ये टेकअप करके चार्टर्ड सर से कंसल्ट एक बार सर से बात करके फिर टेकअप करते हो, सबका शेयर करते हैं, तो उसमें विल गेट टू नो दैट। फ्रेंड्स क्वेश्चन तो अनएंडिंग है, कभी खत्म भी नहीं होंगे। एंड कपिल बगड़िया सर एंड महेंद्र सर है, तो ऑटोमेटिकली इट्स एन अनएंडिंग पार्ट, बट वी हैव टू एंड अप इट। और अगले साल फिर अगले बार फिर कोई और प्रोग्राम रहेंगे, द डिस्कशन विल गो ऑन। सिर्फ थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज कर रहे हैं हम लोग अब आने वाले समय में, कुछ कुछ प्रोग्राम्स वीआई के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स वी आर डिजाइनिंग इट आउट, और कुछ प्रोग्राम पेड प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मोस्ट प्रोबेबली ये प्लान कर रहे हैं कि मेकिंग बैच मीनिंगफुल नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो पेड प्रोग्राम है, नॉमिनल कॉस्ट रहेगी 1000 1000 और 1500 2000 के आसपास की कॉस्ट रहेंगी, बट सेशन थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, स्पीकर्स का डिलिब्रेशन और थोड़ा एक्सटेंडेड करते हैं, क्योंकि 90 मिनट्स में इसको काफी समय से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग आए और ज्यादा से ज्यादा फास्ट आईपीएल स्टाइल में ज्यादा डिलीवरी हो जाए, डिस्कशन हो जाए और हम आगे बढ़ा पाए। ये ऐसा अटेम्प्ट कर रहे थे, अब इसको लगता है कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, एंड अगले साल जो स्पीकर्स है, स्पीकर्स का टीम भी चेंज करेंगे, दे विल बी ऑन सम अदर टॉपिक। एक टॉपिक आज सब लोग यहाँ पे है तो उनका कमिटमेंट यहीं से ले लेता हूँ, एंड आई एम यूजिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी। एक प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर रहे हैं समवेयर इन दिस 2024 के एंडिंग में प्लान करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेसेस एंड द टैक्स एंगल, है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, शेयर होल्डिंग ट्रांसफर है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरी फर्म है, कन्वर्शन है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चेंज ओवर करना है या नई नई जो प्लानिंग करनी है उस पे, एंड स्पीकर्स वुड बी कपिल सर, दैट विल बी अ पेड प्रोग्राम। लेकिन आई विल आई कैन वेरी स्ट्रांगली से दैट इट विल बी वर्थ अटेंडिंग दैट सेशन, तो उसको भी मार्क कीजिएगा। और शायद हम लोग जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसमें भी नॉर्मल कॉस्ट एड ऑन करते हैं, ताकि वी गेट अ क्वालिटी ऑडियंस, और शायद थोड़ा कम भी चलता है लेकिन क्वालिटी ऑडियंस हो जाए, डिस्कशन फ्रूटफुल चले, एंड इट लेट इट बी अ बोथ वे कम्युनिकेशन। व्हेन प्रीतम सर इज देयर, सतीश सर इज देयर, कपिल इज देयर, नितिन इज देयर, साकेत सर इज देयर, रसिका मैम इज देयर, तो हम लोग इसको बोथ वे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, ताकि म्यूचुअल डिस्कशन है। शायद हो सकता है कोई नए इशू है, नई चीजें हैं, वो भी हम लोग लेके आ पाए और फ्रूटफुल डिस्कशन पे लेके आ पाए। दिस इज द वे वी आर प्लानिंग टू गो अहेड विद द वीआईए टैक्स एंड कॉर्पोरेट लॉ फोरम। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको प्लान करते हैं। आप सब लोग जितने अवेलेबल है, इंश्योर कीजिए कि आपके ईमेल आईडी, फोन नंबर यहाँ पे लिखे हो। तो वीआई का जो बैक ऑफिस सेक्रेटरी है ये बहुत स्ट्रांग है, तो जितने नॉर्मली पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रेगुलर कम्युनिकेशन चले जाते हैं टैक्स फोरम पे, तो वी विल कीप रिसीविंग द मैसेजेस जो टैक्स फोरम के प्रोग्राम्स होते हैं, और इसको बेटर डिस्कशन फोरम पे कन्वर्ट करते हैं, कुछ प्रोग्राम क्वालिटी प्रोग्राम में लेके आते हैं। वी आर प्लानिंग 2 प्रोग्राम, एक तो पेड वाला जो था रिस्ट्रिक्शन ऑफ द बिजनेस पे प्लान कर रहे हैं अपन, एंड नेक्स्ट एक प्लान कर रहे हैं सक्सेशन प्लानिंग पे एक्चुअली प्लान कर रहे हैं। तो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर इन दैट पार्ट, तो वो लोग भी हम लोग इसको कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे प्रोग्राम इस तरीके से बनाए कि एनीवन कैन अपफ्रंट उसको बना के एग्जीक्यूट कर पाए। यानी यहाँ से 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे का प्रोग्राम हो जाए, तो जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने यहाँ पे अप्लाई कर पाए, उस चीज को इनडायरेक्टली अप्लाई कर पाए। तो सब टेम्पलेट्स, फॉर्मेट और वो सब चीजें हम लोग रेडी करके उसको विल कम आउट विद दैट। तो इस तरीके से प्लान करते हैं। फ्रेंड्स ये सब प्रोग्राम पॉसिबल होता है बिकॉज वी हैव द सपोर्ट ऑफ द एमिनेंट स्पीकर्स ऑफ दिस सिटी। वी हैव बगड़िया सर, ऐसे देखा जाए बड़ा जो शुरुआत में प्रेसिडेंट सर ने भी कहा कि इतने वैल्यूएबल टाइम इनका इजीली यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि फ्री फंड में बुला लेते 2-4 घंटे ले लेते। ये तो कपिल के है, महेंद्र सर, बगड़िया सर के अच्छा हो तो शायद इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और वो डिस्कशन भी नहीं हो सकता जो हम लोग यहाँ पे फ्री फंड में कर लेते हैं। तो वी आर थैंकफुल टू ऑल द स्पीकर फॉर देयर help and support for the VI Tax Forum. Thank you, Bagadiya sir. Thanks to Mahendra sir, and of course, thanks Kapil for all the time you have taken out for VI. Thank you, and thanks to all for making this program so successful. Thank you. Thanks.